Consumer always on the lookout for distinctive content that will appeal to their taste, and with more and more ways to explore through digitization and newer technologies, the power to choose is in their hands. And that's what we wish to achieve with Ant TV, to give them relatable stories, to satisfy their needs for unique experience, and in turn get our own loyal set of viewers. After the successful launch of Ant Pictures, we want to build a network of channels to meet the changing consumption trends of today's evolved viewers. Ant TV will ensure a strong consumer connect by mirroring human truths and providing multi-genre content that will appeal to them and entertain them through several large formats, popular international shows. We have a vast library of over 1.2 lakh hours of television content to prove that the Z's roots run deep. As one amongst the largest producer and aggregators of Hindi programming in the world, our sincere effort is to persistently increase our market share, whether on the existing product itself or by creating new products and fragmenting the market. As Ant TV readies to take off, I am confident that it will emulate and complement the great level of achievement that its predecessor channels have accomplished. Thank you once again for joining me here as we begin a new chapter. That's it, Thank you very much. First of all, Puneet, who's a friend, apart from being a friend, spearheading the movement to change television, and of course the pioneers, the whole Z Entertainment Group, Subhashji, everyone for years. And I say this story again and again and again. When Z was launched, we had all traveled together in London, in America, all over the world. And I don't want to embarrass Puneet, but Puneet used to wear shorts then. एंड उस वक्त उसने ऐसा भी बोला था कि यार ये क्या इन लोगों के साथ जो है हम इधर उधर घूमते रह रहे हैं, बोर कर रहे हैं, हमें पिज़्ज़ा खाना है और ये रोटियां खिला रहे हैं हमको. But my association with them is like a family. They've always treated me like a family. So I will first of all take this opportunity to thank the whole Z family, everyone, whichever part of the world they are, in America, in England, in South Africa, in India, Southeast Asia. I want to thank you from the bottom of my heart and say that I'm extremely grateful that whenever there is a big leap, whenever there is a big move, जब भी
कोई ना कोई बड़ी बात जी की फैमिली करना चाहती है या करती है और उसमें हमेशा कामयाब होती है, ये मौका मुझे देते हैं कि मैं इनके साथ उस खुशी में शरीक हो सकूं. सो थैंक यू वेरी मच. और I know everybody will hear about Ant TV, and Puneet has talked about it, and as the evening goes, we'll talk about even the program that I am going to associate with, which I'm very, very proud of. It's very interesting, very beautiful. Inshallah, you people will also like it. But I want to say, this whole move towards having a mix of contemporary and traditional, seeped in values kind of concept, I think it is the need of the hour in terms of what television content and television channels should be. So this move itself will bring in new programming, perhaps a little more edgy also, as Puneet and we always keep discussing, more fun, more vibrant, and everybody here in Ant TV, including myself, all the employees here, promise you that we'll make sure that we make you watch this new channel, make you enjoy and be entertained more than Z has already done. So thank you very much, everyone, and thank you for a warm welcome. And one last request, ये झूला मैं घर लेके जा सकता हूँ, please. Please ले जाए आप इसको. हाँ, please, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं ऐसा घूमता रहूँगा इसके. मुझे तो संभाल नहीं पाएगा, तो आप ही ले जाए. Thank you very much, everyone. We'll see you in a bit. Thank you. जश्न जीने का. जश्न जीने का. Of this very change, it will mirror you. जैसे है आप, वैसे है हम. As a brand, we are young in spirit, deep-rooted in values. We intend to push the boundaries, try new things and new ways to meet the challenges of this increasingly dynamic space. We are launching a mainline general entertainment channel with a strong lineup of fiction, non-fiction shows, marquee events, and blockbuster movies. Through content that is contextual, we will represent not just the contemporary and the progressive Indian, but will look towards every Indian someday becoming an Andean. We are all about our people. We are all about our people. This would have not been possible without a tireless and a very passionate team. I would like to thank my colleagues Doris, Sunanda, and Rachin
who have been in the forefront of shaping this brand. Our partners, all the production houses who are committed to deliver only the best. We have complete faith in each show, and the enthusiasm is for all to experience. Also, I would like to thank Puneet for having given us the opportunity to be part of this very exciting journey. To sum it up, Ant TV is more than just another content offering. It is our way of celebrating the spirit of living. ये है जश्न, जश्न जीने का. We promise you one thing, we will not stop here. We will believe, we will dream, and with your good wishes, achieve what we set out to do. Ladies and gentlemen, without further ado, let me present to you some of our shows and let the celebration begin. हम हैं एक जश्न जीने का, हम हैं एक उत्सव इस देश के लाखों रंग और करोड़ों सपनों का, हम हैं एक त्योहार खुशियों का, उम्मीद का, हौसलों का, नएपन का। एंड टीवी का हर पहलू, हर पेशगी है एक जश्न। रज़िया सुल्तान, ये कहानी है 13वीं सदी की एक लड़की की जो बनी सुल्तान। ये चमकती मिसाल एक जश्न है प्रगतिशीलता का, काबिलियत का, स्त्री शक्ति का और सम्मानता का। एक सुल्तान। भाभी जी घर पर है। एक आईना हम सब में छुपी उस तंगदिली का जो दूसरों के हालातों से जलता है। बड़ी देवरानी किस्सा है नई और पुरानी पीढ़ी के बीच समझौतों का, नारी और पुरुष के बीच बदलते रिश्तों का। बेगूसराय सिर्फ एक सैंड माफिया परिवार की कहानी नहीं, बल्कि एक जश्न है, एक अनदेखी इंडिया का, इसके विचित्रता का, एक अनदेखे रंग और अनसुनी बोली का। और इन सबसे बड़ा जश्न है एंड टीवी पर है इंडिया की जनता का। इंडिया पूछेगा सबसे शाना कौन? कोई शाना तो कोई 1.5 शाना। और इंडिया की पब्लिक पूछेगी सबसे शाना कौन? पब्लिक जो सब जानती और पब्लिक जो कुछ भी पूछ सकती है। जैसे गिटार में लगते हैं कितने तार, गेटवे ऑफ इंडिया में कितने हैं द्वार, एक पैकेट ब्रेड में कितने होते हैं स्लाइस, एक पूरी ट्रे में कितनी होती है आइस, एक अरब में कितने होते हैं जीरो, दिल्ली से आए कितने हीरो। डोंट अंडर एस्टिमेट द शान पट्टी ऑफ अ कॉमन मैन। और ये खेल ज्ञान का नहीं है, ये शान पट्टी का है, क्योंकि जमाना ही शानों का है भाई। मेरे साथ देखिए, इंडिया पूछेगा सबसे शाना कौन, सिर्फ एंड टीवी पर। Don't underestimate the shan patti of a common man. ये शानों का जमाना है बॉस, बॉस। सबसे शाना कौन? सबसे शाना कौन? इंडिया पूछेगा सबसे शाना कौन? इंडिया पूछेगा सबसे शाना कौन? शाना सबसे शाना, आह शाना सबसे शाना कौन? Oh. Happy Diwali to everybody.
गुड इवनिंग। जैसा आपने देखा थोड़ा बहुत शो के बारे में कि इंडिया पूछेगा सबसे शाना कौन, और सवालों का जो एक सिलसिला है वो शुरुआत से शुरू हो जाता है। पैदा होते ही कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुए थे, मम्मी पापा कौन है तुम्हारे, कईयों को जवाब नहीं मालूम होता, लेकिन फिर भी सवाल शुरू हो जाते हैं। घर से निकलते हैं तो बीवी पूछती है वापस कब आओगे, हस्बैंड बताना नहीं चाहता लेकिन फिर भी कहता है घर में तुम क्या पकाओगे, और ऐसे सिलसिले चलते रहते हैं। और जब तक इन सवालों से हम बातचीत ना करें, उनसे मुखातिब ना हो, तो मज़ा नहीं आता ज़िंदगी का। और आज जो शो है इंडिया पूछेगा सबसे शाना कौन, इसके अंदर थैंकफुली मैं बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा डाइग्रेस करूँगा इस शो के बारे में बताने के, कि इसके जो सवाल हैं वो आम आदमी पूछेगा, यानी आप और मैं, सड़कों पे लोग हैं, स्कूल में जो लोग हैं, जहाँ पर भी। और ये थैंकफुली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एन टीवी की जो टीम ये शो बना रही है उनको हेल्प कर रहे हैं आई थिंक, और आई थिंक नहीं मुझे यकीन है, मेरी दूसरी फैमिली, मेरे बहुत पुराने दोस्त, बहुत अजीज़ दोस्त, और इंडिया में शायद ही और दुनिया भर में शायद ही उनसे अच्छा कोई शो बनाता है बिग सिनर्जी वाले सिद्धार्थ और रोज़ा और उनकी सारी जो टीम है। और थैंकफुली सिद्धार्थ बासु जो हैं सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि उनके जो सवाल होते हैं बहुत अतरंगी, बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं। आम आदमी पूछेगा, सिंपल सा आदमी पूछेगा तो अच्छे से सवाल होंगे। और जवाब कौन देगा? जवाब भी आम आदमी देगा, लेकिन हम उसको बोलते हैं शाना। शाना, मैं मुंबई में नया हूँ तो मुझको बताया गया है शाना वो होता है जो बोलता है साइड में 250 ग्राम हवा अंधे पतली गली पकड़ कान के नीचे दूंगा तेरे को, वो वाला शाना नहीं। हमारा जो शाना है, हमारा शाना वो है जो शान से हर बात करता है, शान से जीता है, शान से खेलता है, शान से समझता है कि उसको सब कुछ आता है, और अगर नहीं भी आता तो शान से मानता है कि उसको सब कुछ आता है। वो शाना होता है। और सवाल होंगे कॉमन मैन के उनसे, और हर किसी कॉमन मैन को हमारे शो पर आकर ये मौका मिलेगा अपनी शान पट्टी दिखाने का, और शाना बनने का मौका मिलेगा जब वो प्राइज जीत जाएंगे। दो आई डोंट थिंक प्राइज इज द इंपॉर्टेंट थिंग, द थिंग इज द फन इन दिस शो, बिकॉज दिस वन रियली डील्स विद ऑल द क्वेश्चंस that you really think that are very easy to answer, or sometimes you don't even think about them. But common people, people from different walks of life, have different questions to ask, and sometimes the easiest one of them, or the youngest one of them, or the sweetest of the people who are going to ask you can completely stump you. So this program is going to start on air sometime in March. I'm not supposed to reveal all the details. I've been warned by Siddharth and by Puneet, but I have decided कि हम आपके साथ यहीं से कुछ गिने चुने लोगों के साथ थोड़ा सा खेल खेल लेंगे, तो आप भी खेल समझ जाएंगे, और ये पहली मेरी भी रिहर्सल हो जाएगी। तो प्लीज़, हमने बिल्कुल ये कॉमनली स्टार्ट किया है कि जो होस्ट है शो का, जो कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि सवाल जो होंगे कॉमन आदमी के होंगे, जवाब भी कॉमन आदमी के होंगे, मैं सिर्फ ब्यूटी के लिए हूँ इस शो के अंदर। अब मेरी उम्र ऐसी हो चुकी है कि आराम से अच्छा काम मिले तो मैं इसी को फ़ोन करके ये बोलता हूँ यार आराम वाला काम दो यार, आराम से आऊँ, सोता रहूँ, सुंदर लगूँ। सिद्धार्थ भी कहता है लाइनें वाइनें सिखानी पड़ती हैं, चुपचाप से खड़े हो, काम करो, घर जाओ। तो मैं सिंपली आऊँगा, थोड़ा सा काम करूँगा, थोड़ा सा हंसाऊँगा, थोड़ा सा जोक करूँगा, बट आई विल मेक श्योर दैट यू हैव लॉट ऑफ फन, क्योंकि मार्च से इंशाल्लाह एन टीवी पर आने वाला है इंडिया पूछेगा सबसे शाना कौन। एंड आई लाइक टू स्टार्ट दिस tonight with all the journalists, all the people who are here to report, all the people of the media, because we all have grown together for years. So मैं सवालों के लिए कुछ एक बोल है मेरे पास, मैं आप में से ही किसी को चूज करूँगा, आए और गेम में ऐसे ही समझाऊंगा। पहले मैं पीली चिट उठाता हूँ, रैंडमली है, तो प्लीज़ मैं थैंक यू। सो पहला नाम यहाँ पे आया है उर्वी, बिजनेस स्टैंडर्ड। मेरी आंखें खराब नहीं है, हैंड राइटिंग खराब है। उर्वी, वुड यू लाइक टू गेट अलॉन्ग समवन विद यू? थोड़ा सा मॉरल सपोर्ट के लिए, क्योंकि ये गेम जो है पेयर्स में खेला जाएगा जब हम ये खेलेंगे। आ जाओ, जल्दी से आ जाओ उर्वी। उर्वी फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। इनके लिए एक माइक्रोफोन ले आ देंगे प्लीज। और भी आप बिजनेस स्टैंड में काम करती हैं क्या? एंड उर्वा आप कहाँ काम करते हैं? सॉरी गौरव, आप कहाँ काम करते हैं? मैं टेलीविजन televisionpost.com। ओके, आप दोनों दोस्त हैं? जी। शादी करने वाले हैं? जी नहीं। राखी बांधती हैं अभी? जी नहीं, जरूरी नहीं है। चलो इस बारे में अभी बात नहीं करता हूँ, मैं तुम्हें गेम बताता हूँ क्या करना है, वैसे तुम ब्लश करने लग जाओगे गौरव। हाँ, okay, you enjoy your job?
Yes, It's very fun to much. do what you're doing. Very You much. like your job, writing about business and stuff. Love it. Yeah. Do you like games, game shows? Yep. तो ये बड़ा सिंपल सा गेम शो, इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं होने वाला। मैं तुम्हें साइड में लेके जाऊंगा क्योंकि हमारा सेट भी तकरीबन ऐसा होगा। इस साइड आ जाओ थोड़ा सा, उर्वी एंड उर्वा। यहाँ पर कॉमन लोग हैं, जैसे मैंने बताया कि आम आदमी जो है आएगा यहाँ पर और आपको मौका मिलेगा। जैसे तस्वीरें जा रही हैं, इनमें से किसी भी इंसान को चुन लो। ये बाबा जी को चुन लो, ये बेबी को चुन लो, ये दूसरी वाली बेबी को चुन लो, ये वाले लड़के को चुन लो जो बड़े रिलीजियस लग रहे हैं। तो इनमें से किसी को भी चुन सकते हैं आप। जो यहाँ पे लोग आएंगे ये आपसे एक सवाल पूछेंगे और उसका जवाब आपको देना। बड़ा सिंपल सा है, रोजमर्रा की जिंदगी से सवाल होगा, ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। तो इनमें से उर्वी एंड गौरव किसको चूज करना चाहेंगे? सरदार जी हैं, ये पहलवान साहब टाइप लग रहे हैं मुझको। ये मेरे घर के सामने बैठी हुई हैं। सरदार जी अच्छे हैं। नहीं, आप लोग डिसाइड कर लो। थोड़ा उधर मुंह देखो, यार शक्ल दिखाओ, नहीं तो टीवी पे नहीं आओगे तुम दोनों। लास्ट चांस है तुम्हारा टीवी पे आने का। यहाँ खड़े हो, अभी चूज करो। ख्याल है सरदार जी अच्छे हैं। वाई वुड यू चूज सरदार जी? क्या लग रहा है तुमको सरदार जी क्यों? बड़े दिलफेक टाइप होते हैं, बड़े खुश मिजाज होते हैं। सरदार जी सही है ना? हाँ? पक्का उर्वी Happy go lucky होते हैं जी। हैप्पी को लकी होते हैं। तुम्हें लगता है आसान सा सिंपल सा सवाल पूछेंगे? अब शाने तो बनना है ना। हाँ, तुम्हें शाना बनना है। उर्वी तुम्हें क्या लगता है चॉइस ठीक है कि इसके बाद गौरव से बात नहीं करोगी सवाल सुनने के बाद? नहीं, वो तो पिटता रहता है, तो प्रॉब्लम नहीं है उसके। उसका है ऐसा, गलती करता रहता है ऐसी। तो देखते हैं कि जो हैप्पी गो लकी सरदार जी हैं, इनको अपने आप को इंट्रोड्यूस करने दीजिए। कैन वी हियर द सरदार जी? और ऐसा ही होगा गेम के अंदर कि ऐसे ही कॉमन लोग, और ये जेन्युइनली कॉमन लोग रैंडमली पूरे इंडिया में सिद्धार्थ और उनकी टीम ने, बिग सिनर्जी की टीम ने और एन टीवी की टीम ने ऐसे ही जा जाके लोगों से सवाल पूछे। और कोई भी सवाल कभी भी पूछ सकता है और उसका जवाब हमारे जो शान पट्टी दिखाने के लिए आए हैं उनको देना पड़ेगा। सरदार जी की इंट्रोडक्शन दें, कुछ बताएं अपने बारे में। सरदार जी, कितने हैप्पी गो लकी हो तुसी? सत श्री अकाल सर, मुझे आपका नाम बताइए, आप कहाँ पर रहते हो और आप क्या करते हो? मेरा नाम प्रकाश सिंह जेठूवालिया है। मैं आरसपुरा, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक एक गांव है कलोई, मैं वहां पे रहता हूं, जहां पे इन दिनों फायरिंग वगैरह चलती है। और अभी मैं टैक्सी स्टैंड पे टैक्सी चलाता हूं। ओके, और इससे पहले आप क्या कर रहे थे सर? इससे पहले मैं इंडियन आर्मी में था, पंजाब रेजिमेंट 26 पंजाब मेरी यूनिट का नाम था। आपका सवाल पूछिए सर। मेरा सवाल है, हमारे राष्ट्रीय गान जन गण मन में जय हे कितनी बार आता है? ओ हो अभी लग रहे हैं हैप्पी गो लकी की, नहीं तेरे को बताऊं तू ना हैप्पी लग रहा है ना लकी लग रहा है। 52 सेकंड दे दो, बता देता हूँ। 52 सेकंड्स नहीं, अगर तुम लोग गिनना चाहो डिस्कस कर लो। उर्वी जो है तुझे बहुत पीटेगी जैसा उसने कहा, बिल्कुल उसे लग रहा है इसको क्यों चॉइस दिया, इसको क्यों चॉइस दिया। देखो ला 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 48 49 50 51। वहां ऐसा तंग नहीं करूंगा। गेम के अंदर कहाँ जा रहा है? यहाँ खड़ा रहे, घर जाने के लिए रखिए। गिन गिन जल्दी गिन, बोलो ना उसको, हेल्प हिम विद इट। वुड यू गाइस लाइक टू एक्चुअली डू द नेशनल एंथम एंड देन फाइंड आउट? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ, आई रिपीट द क्वेश्चन टू यू। हमारे राष्ट्रगान में जय है कितनी बार आता है? आई नो मैं थोड़ा इरिटेट कर रहा हूँ कि मुझे पता है, गिनने दे बाद में। हो गया? हाँ, मैं चॉइसेस भी दूंगा। मैंने ऐसे डरा रहा था तेरे को यार, ऐसे ही तंग कर रहा था। बता देते। नहीं, मैं ऐसे ही तंग कर रहा था, चॉइसेस भी दूंगा। तू जल्दी से घुस गया, मेरे को 52 सेकंड्स दो, मैं बताता हूँ। बहन जल्दी बता ले। 52 मिनट्स हो गए। तुम्हारे ऑप्शन है हमारे राष्ट्रगान में जय है कितनी बार आता है? तुम्हारे ऑप्शन है 8 या 6 बार। 6। सॉरी, डिसाइड कर लो एक, 8 की 6 की 7 कर ले, मांडवली कर लो। हालांकि 7 चॉइस में नहीं है बिल्कुल भी। वहां से लोग बोल रहे हैं 8, आप बोल रहे हो 6। क्या लगता है बताओ मुझे? 8 ऐसा कैसे? 8 ऐसा सब्जी खरीदने का, ले लो, ठीक है, दाल दे दो थोड़ी सी। उर्वी, फाइनल डिसीजन, क्योंकि तुम्हें बुलाया था, बिजनेस स्टैंडर्ड से हो, कैलकुलेट करो, जल्दी से बताओ 8 की 6। और मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम सही जवाब दोगे और शाने बनोगे तो तुम्हें मैं गिफ्ट हैम्पर भी दूंगा। मैंने बोला तो 6। He's saying 6. What do you want to say? Final answer quickly. I counted 8. She counted 8. But I'm just wondering if I should just trust him. अगर गलत आंसर हुआ तो तुम्हारी दोस्ती में खलल आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, वो तो मैं पीट पाट के, तो I told you ना, it's okay. पीठ ठीक है, पाठ क्या होता है ये? अच्छा, डिसाइड करो, आंसर दो फटाफट। गौरव, उर्वी,
अच्छा अगर नहीं भी, अगर गलत जवाब भी दोगे कि पहला शो है, पुनीत है, जी है, एंड टीवी है, सिद्धार्थ है, तो मैं गिफ्ट हैम्पर वैसे भी दे दूंगा। चलो 8 की 6। हेल्प कर दो यार, इनको बोल दो प्लीज, बता दो यार। अयो अभी 6 वाले भी 8 वाले। Well, it's a big reflection upon the Indianness of Indians. That is why I didn't want to take a chance and I wanted him to decide. Oh, so happy go lucky, happy go lucky. बच्चे से पूछ लेता। Okay, final answer. 6 and 6 is the right answer. Very well. ये अच्छी बोल रहा था। 8 कौन बोल रहा था पब्लिक में से? Okay. नॉर्मली शो में ऐसा होगा, सरदार जी खुद हमको आंसर बताएंगे। तो हैप्पी गो लकी जी। और इसका सही जवाब क्या है? और इसका सही जवाब है जया है जया है जया है 6 बार आता है। तालियां 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 तालियां। And to the army of our country on the border. जय है जय है जय है। Well done, आपके लिए दोनों के लिए गिफ्ट हैम्पर है एंड टीवी की तरफ से। इसमें चॉकलेट्स हैं, शहद है, हनी है, आमंड्स हैं। बादाम खाओ और अपनी दिमाग की ताकत को बढ़ाओ। Alright, thank you very much, Gaurav. Let's hear it for Urvi and Gaurav. Well done. This is fun. Thank you very much. Please come. So we have the format and I've got too many microphones. Okay, now a different color, green. Is it okay? We can play a couple of rounds more? Everybody's happy to do that? Otherwise, the press conferences boring होती हैं यार, ये कर लो. Amit, दैनिक जागरण. Amit from दैनिक जागरण. Are you here, Amit? किसी को साथ में लाना चाहोगे, अकेले आओगे? नॉर्मली ये गेम जो है पेयर्स में खेला जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ पेयर को लेकर आओ, जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसको लेकर आओ, जिसको जान सॉरी जो भी तुम्हारा रिश्ता है उसको साथ में लेकर आओ। आ जाओ अमित फ्रॉम दैनिक जागरण विद हिज पार्टनर। बहुत ज्यादा गले मिल रहा है। आपका नाम क्या है? इसमें बोल माइक्रोफोन यहाँ रखना, खोल क्यों रहा है? चंडी दत्त शुक्ल। चंडी दत्त आप क्या करते थे? नाम जी मैं दैनिक भास्कर में हूँ। दोनों राइवल हैं तुम दोनों? जानते हो एक दूसरे को? एक दूसरे से कहानी चुराते हो, झगड़ा करते हो कि कौन पहले कहानी डालेगा? सारी चीजों में झगड़ा करते हो। और दोस्ती क्यों? झगड़ा नहीं, दोस्ती है उसमें। दोस्ती है उसमें दोस्ती है। तो आधा पैराग्राफ तुम, आधा पैराग्राफ ये? नहीं, जो गॉसिप्स एक्सक्लूसिव होती हैं हाँ उनमें हम लोग थोड़ी अच्छा बेसिकली गॉसिप करते हो। हेडिंग ये चेंज करते हैं, इंट्रोज मैं चेंज कर देता हूँ। झूठ कौन लिखता है ज्यादा, मुझे ये बताओ पहले। वो दोनों। वो मेरे बारे में कौन लगता है मुझको पहले ये बताओ। तो क्या कर रहा है, रिकॉर्ड करने लगे यहाँ पे गॉसिप? ये पहले से रिकॉर्ड था, मेरा काम अभी भी जारी है। अच्छा जारी है। अच्छा और दिन में न्यूज़ कैसे ढूंढते हो तुम दोनों? मुझे ये गॉसिप जो है कैसे ढूंढते हो? मतलब मक्खी बन के दीवार पे जाते हो, क्या करते हो? ईव्सड्रॉप करते हो या चुपचाप से रिकॉर्डिंग करते हो जैसे इसने किया चुपचाप? नहीं, हमारा काम न्यूज़ से ज्यादा इंटरव्यूज करने का होता है। इंटरव्यूज करते यहीं पे मुंबई में करते हो? जी दोनों के दोनों। और दोस्ती कितने साल की? दोस्ती 3 सालों की। 3 साल से। अच्छा और मुझको बताओ दोनों गेम समझ गए हो क्या है? तो यही तुम्हारे सामने भी ऐसे ही फोटोज आएंगे सेकंड राउंड की, तुम दोनों डिसाइड करना, चूज करना, वही सवाल पूछेंगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे और सवाल पूछेंगे और फिर जवाब भी वही देंगे, लेकिन तुमको मैं चॉइसेस जरूर दूंगा। श्योर। लाइफलाइन भी मिलेगा? लाइफलाइन, फोन अ फ्रेंड वगैरह कुछ नहीं। गॉसिप करने वालों को मैं कुछ नहीं देता हूँ। 1-2 यहाँ पर हैं, तेरे को बताएंगे जो करते हैं उनको क्या क्या किया मैंने। इधर आ जा तू। सो अमित एंड चंडी दत्त जैसे चंडी का अवतार। जी बिल्कुल। चंडी द्वारा दिया गया। चंडी पूरा नाम चंडी दत्त शुक्ल। कहाँ से हो? जी मैं उत्तर प्रदेश के गोंडा नाम के जिले से हूँ। ओके, काफी डिफिकल्ट हो गया। चंडी दत्त फ्रॉम गोंडा। एंड तुम कहाँ से हो? दरभंगा, बिहार। दरभंगा, सब वेरी गुड बोथ ऑफ यू, जहाँ से भी हो, बहुत अच्छी जगहों से तुम दोनों। अब तुम यहाँ से चूज करो, तुम्हारे सामने 4 लोग हैं। ये लाल टी शर्ट वाले, ये फोटोग्राफर हैं, अपना गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर तस्वीरें खींचते हैं कुछ पिछले 10-12 साल से, मैंने सुना है। ये बाबा जी हैं जो शायद फल बेचते हैं, और ये इधर आ जाओ म्यूजिशियन लेडी हैं। तो इनमें से जो डिसाइड करो जिनसे तुम चाहोगे, और उधर देखो यार तो शक्ल दिखेगी। हाँ, दोनों डिस्कस करके डिसाइड कर सकते हो। आ जाओ। वो बेचारे बड़े दिल वाले होते हैं। अच्छे बड़े बाबा को लेना चाहते हो? जी बाबा को। पक्का? ओके, अमित एंड चंडी बाबा को लेना चाहते हैं तो आजकल बाबा है हिट भी हैं बहुत। नमस्कार दादा। नमस्कार बेटा, नमस्कार।
और बताइए आपका नाम क्या है और आपके बारे में कुछ बताइए हमें। हमारा नाम रमेश खरा है। अब आजमगढ़ के रहने वाले हैं। हम मुंबई सन 75 में आए। हाई स्कूल तक पढ़े थे और काम ढूंढने के चक्कर में यहाँ आए और यहाँ भटकते भटकते काम अपना यही सब फ्रूट का धंधा करने लगे। हाँ दादा, कोई सवाल हो तो पूछिएगा। अरे आप तो सब फल खाते हैं और ये बताइए कि पेड़ों पर उगने वाला सबसे बड़ा फल कौन होता है? आ जाओ इधर आ जाओ। रमेश खरे, कैसा लगा तुमने जब अपना चॉइस लिया? बीच में खेलने को कह रहे हैं, तुम टीवी पे नहीं आ रहे हो दोनों गॉसिप कॉलमिस्ट। बताओ खरा साहब, रमेश खरे साहब ने पूछा है कि पेड़ पे उगने वाला सबसे बड़ा फल कौन सा होता है? हाँ? ये खोदा पार नहीं, आंसर नहीं देख दूंगा इसको, कितना भी गॉसिप कर ले इतना नहीं ढूंढ सकता मुझसे। सिद्धार्थ सर, अनीता मैम हमारे आईएमसी की हैं। इसलिए मालूम है तू चीटिंग करेगा। ओके, सवाल मैं तुम दोनों को बताता हूँ। रमेश खरे जी का है खरा। रमेश खरा साहब मुंबई से पूछते हैं कि पेड़ पर उगने वाला सबसे बड़ा फल कौन सा होता है, और आपको चॉइसेस भी दूंगा। वैसे मालूम है, सोच सकते हो। नहीं चॉइसेस तो माइक में बात करना। चॉइसेस कैसे? चॉइस अगर वैसे क्या लगता है तुमको, क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि हमें आपस में विचार करने का कुछ समय मिलना चाहिए। अकेला होटल में कमरा दिलवा दूं तुम दोनों को? नहीं। अरे सर, नेकी और पूछ-पूछ। आपको छोड़कर कोई होटल में क्यों जाए? नहीं, इतना भी कंटेम्प्रेरी नहीं है एनटीवी। ओके, तुम दोनों की पहले बात कर लो, फिर बताता हूँ। चॉइसेस भी दूंगा। चॉइसेस हैं तुम्हारे पास, इतनी दूर मत जाओ, पास रहो, बीच में रहो। चॉइसेस भी दूंगा, पहले से डिसाइड करो। अरे सुनाई तेरे पास जाके सर अब चॉइसेस ये सब डिस्कस करके तुम चॉइस मांग रहे हो। तुम पहले जवाब दोगे मुझको। अच्छा, तुम्हारी चॉइसेस हैं। ऑप्शन ए वाटरमेलन यानी तरबूज या तरबूजा, और दूसरा है जैक फ्रूट यानी कटहल। जी कटहल। कटहल पक्का किया जाए, लॉक किया जाए पूरी तरह से। गलत शो पे आ गया तू। नहीं, सिद्धार्थ सर का ही शो है। ओके, तुम्हारा आंसर है जैक फ्रूट। चॉइस तुमने दोनों डिसाइड की है। एक बार खरा साहब से जान लेते हैं कि तुम्हारा जवाब सही है कि नहीं। खरा साहब प्लीज हमको जवाब बताइए। हाँ, तो जवाब भी समझा दीजिए हमें। हाँ ये बेटा, ये तो देखो जमीन पर उगने वाला फल है, लता पर। इतना एक तरबूज है, लेकिन पेड़ों में सबसे बड़ा फल कटहल होता है। ये वेल डन अमित एंड चंडी, फैंटास्टिक। इनका गिफ्ट हैम्पर जल्दी से लेके आओ, पैर छूने की जरूरत नहीं है। आ जाओ। Here Chandi, here Amit, and thank you very much for participating in the show. God bless you both. Thank you Amit, thank you Chandi. God bless you. Thank you very much. Take your seats. Give my microphones back. Take your dictaphone back. Thank you, thank you. Let's hear it for Amit and Chandi, please. Okay, one last round I do because I am having fun. और मैंने वक्त दिया था NTV को कि मैं रिहर्सल करूंगा, मेरी यही हो जाएगी तो मैं घर जाके आराम से सो सकता हूँ. So is this the color we have not taken? Blue? Okay, thank you very much. The last one that we'll do, we can go on doing this all night. इसमें नाम है निवेदिता. Nivedita from INS. Nivedita from INS. Nivedita, you can bring a friend along if you want, a partner along. 2 हैम्पर मिलते हैं अगर 2 आदमी आते हैं तो. फटाफट. Nivedita from INS and her friend who's coming on stage for the last round. How are you? And how are you, darling? Please come here. नाम बताएं अपना आप माइक में. पूजा. इतना पास आ जाओ ना, तो दूर मत करो. हाँ, क्या करती हो तुम पूजा? नहीं वो तो समझ गई. Okay. इन पंजाब केसरी. ज़्यादा शानी मत बनो मेरे साथ तुम. इतना तो जम है, जर्नलिस्ट बैठे हैं यहाँ पे. पंजाब केसरी. पंजाब केसरी में काम करते हो. कितने सालों से काम करती हो? 2 years. किस सेक्शन में? लाइफस्टाइल कल्चर. लाइफस्टाइल एंड कल्चर. एंड आप क्या करती हैं निवेदिता? I am also. तो जर्नलिस्ट वाला पार्ट पता है, मतलब मैं डिटेल. How many experience? I mean, I have 7 years of experience 7 and I love years. you. And you love me. Yeah. See, experience, what you know doesn't matter. As long as you love me, everything is right. Yes. So I love you. आगे हाँ, बस आगे सोचना ही चाहिए. और आप दोनों दोस्त हैं? यहाँ के बने. अभी नई दोस्ती है? हाँ हाँ. Just now? हाँ हाँ. We both are sharing room also. Yeah.
This is more contemporary than we thought. Okay, but this is really nice. कभी अगर तुम अकेला फील करो अपने रूम में दोनों तो मुझे बुला लेना वहाँ पे. Okay, आप समझ गए हैं गेम कैसा होगा? तस्वीरें आएंगी आपके सामने, जल्दी से चूज करना उनमें से एक, कर लेना पहले, लड़ लेना, झगड़ लेना. हैम्पर तो वैसे भी दूंगा मैं. ठीक है, जीतो या हारो. But try and get the right answer and let's have some fun. We got our prize, I think. Sharing stage with you is Big prize. nothing can beat that. Oh, nothing can beat that. So we'll end the show here. Let's go. No, not at all. All right, so I'm going to show you the 4 questions. 4 सवाल, यानी 4 सवाल पूछने वाले आम आदमी जो एकदम कॉमन मैन है. And you must have understood this, ladies and gentlemen, जब आप देखेंगे कि बिल्कुल randomly सड़कों पे जाकर इनसे सवाल किए गए हैं और बहुत interesting है. These are the few chosen ones. I've seen some of the ones that the Big Synergy team and TV has got together. They're fantastic and very fun questions. चारों में से आपको कौन लगता है कि मूंछ वाले, clean shaven? I think we'll go for housewives. But क्यों? They are the best. इधर आ जाओ. क्यों एकदम दिख नहीं रही टीवी में? क्यों हाउसवाइफ? I think they are the best. तुम्हें लगा कैसे कि हाउसवाइफ है? लग रहा है. मुझे तो प्रिंसिपल लग रही है किसी स्कूल की. नहीं बिल्कुल भी नहीं. एक्चुअली यही होगा कि लोगों को ना सिर्फ हम शक्ल दिखाएंगे, उनकी इंट्रोडक्शन दिखाएंगे प्रोग्राम में और उससे उनको डिसाइड करना है कि शुड दे गो विद देम और नॉट. आर दे गोना आस्क एन इजी क्वेश्चन और नॉट. सिंपल सवाल होगा, मुश्किल सवाल होगा. आपको लगता है हाउसवाइफ हैं और वो बेस्ट होती हैं, इसलिए इनका जो सवाल है सबसे सिंपल होगा. No, सबसे डिफिकल्ट होगा आई थिंक. एंड यू वांट टू चैलेंज योरसेल्फ. शाना दिखाना ना, शाना करिए. मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ऐसे कंपटीटर्स हमारे पास शो में आएंगे. नॉर्मली आइडिया ये है कि आप लोग अनुमान लगाएं कि इनमें से आसान सवाल कौन पूछेगा. ये क्या लगती हैं आपको? ये तो देखो माइक्रोफोन क्यों नहीं रखते तुम लोग मुंह के पास? Okay. हाँ ऐसे. टेलीफोन दूं क्या? नहीं. फिर बात करोगे? अभी नहीं. ये मुझे डेंटिस्ट लग रही हैं. डेंटिस्ट हैं. हाँ. ये क्या लग रहे हैं? बिजनेसमैन. कुछ साड़ी वाड़ी बेच रहे हैं. साड़ी वाड़ी बेच रहे हैं. कुर्ती वुर्ती बेच रहे हैं. ये क्या लग रहे हैं? ड्राइवर. ये मुझे डरावने लग रहे हैं. है ना, खतरनाक लग रहा है ना, इसलिए नहीं लिया हमने. ओके. और ये आपको हाउसवाइफ लग रही हैं. आर यू श्योर अबाउट दिस चॉइस? I think yes. पक्का? डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हुआ? It's okay. Okay, let me get you. Okay, मैं choice तो दूंगा मैं. Let me get you to introduce her, please. Housewife, madam या जो भी हैं जो उन्होंने पहचाना है, इनका इंट्रोडक्शन दीजिए. मेरा नाम शालिनी है और मैं बॉम्बे की रहने वाली हूँ और मुझे लता जी का बहुत गाना पसंद है और खाना बनाना भी बहुत अच्छा लगता है. महाराष्ट्र में एक अच्छी डिश बनाई जाती है, मांसवड़ी करके उसका नाम है. तो उसमें सूजी डाला जाता है या बेसन डाला जाता है? एक मांसवाड़ी करके एक चीज है, उसमें मुख्यतः से क्या डाला जाता है? सूजी डाला जाता है या बेसन डाला जाता है? ये पूछा आंटी जी ने. ये जो हाउस वाइफ है, इधर आओ ना, दोनों खड़े हो. अभी रखो माइक्रोफोन अपने. तुम माइक्रोफोन मुंह यहाँ. अब मुझे बताओ, तुम्हें लगता है तुम्हारी चॉइस ठीक थी? मुझे लगता है कि मांसवाड़ी means something non-veg, I guess, but we didn't get the option. So मांसवाड़ी आपको लगता है नॉन वेज है क्योंकि उसमें वर्ड मांस है, ऐसा लग रहा है आपको? मांस. सुना भी नहीं. हाँ, मांसवाड़ी. मुझको तो ऐसा लग रहा है कोलीवाड़ी ही मांसवाड़ी. मेरे को भी कंफ्यूजन हो गया. मेरे को तो स्ट्रीट लग रही है कोई. और उसमें बेसन डाला जाता है या उसके अंदर सूजी डाला जाता है? मुझे दोनों की दोनों चीजें एक्चुअली पता नहीं क्या होती हैं. तुमको क्या लगता है मांसवाड़ी? इनको लगता है कुछ नॉन वेज है. बात कर लो माइक में, कोई बात नहीं. लेट पीपल नो हाउ यू आर डिस्कसिंग. ऐसे बता दो. Any which ways we are getting the hampers, right? वो तो मिलेगा. पूछ सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं. यार सबको बता दो, मांसवाड़ी में मांस होता है? मांसवाड़ी में मांस नहीं होता है. I think सूजी. I think सूजी मतलब क्या? पक्का सूजी. ओ सॉरी, मैं भूल गया. सूजी है, बेसन है और काली दाल का ऑप्शन भी है. काली दाल. हाँ, और पीली दाल का ऑप्शन भी है. और 3-4 और राजमा. बेसन और सूजी में से देखते हैं ना. हाँ, और शक्कर का भी. नहीं. बेसन और सूजी में से आपका आंसर क्या है? आंसर भी होगा ना यहाँ पर. बेसन है क्या? पता है ना किसी? बेसन नहीं. सूजी. Okay.
थोड़ा सा हेल्प मिल गया तुम लोगों को? नहीं, हमने पहले ही ऑप्शन दिया था। पहले सूजी दिया था? चीटिंग तो नहीं किया ना? किससे पूछा नहीं ना? पक्का तुमने सूजी सोचा था? हाँ, आंटी से ही पूछ लेते हैं। आंटी बताओ, मांसवाड़ी में मांस तो नहीं डाला जाता, ये तो सबने बता दिया। ये कह रही है इसमें सूजी डाली जाती है या डाला जाता है? प्लीज बताइए, सूजी इज द राइट आंसर, दे कैन टेक द हैम्पर बैक होम। उसमें बेसन डाला जाता है। किसने बोला ये? किसने बोला ये? हाँ, किसने बोला ये? मैं बोल रही थी सूजी मीठा होता है। बट तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए क्योंकि तुमने तो सूजी ही चुना था। हम दोनों को तो सूजी लग रहा था, हमने तो सुना नहीं था ना। क्या पुनीत? क्या? अच्छा गिफ्ट, अच्छा कैंसिल हो, गिफ्ट हैम्पर कैंसिल हो गया। नया रूल बना है गेम का, एंड टीवी और बिग स्ट्रेंजर ने डिसाइड किया है कि नया रूल है कि गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। So can I get the hug from you? No, If not, you'll get the gift hamper also. You'll get the hug also. Let's have the gift hamper for both these young ladies for playing so well and trying to cheat. जानते नहीं, हम भी बहुत शाने हैं। Big round of applause. Thank you for the microphones and thank you for participating. Mic भी लेके जाओगे? So that's how the gameplay is going to be, and we can keep on playing all evening. मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है, and I'm really going to enjoy this, and I promise on behalf of what I do best, I will try and entertain you. मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बहुत हंसाऊँ, और बाकी भी जो programs हैं एन टीवी पे जब आना शुरू हो जाएंगे, तो I'm sure they are going to be fun, they are going to be relevant, they are going to be contemporary, they are going to be smart, and they are going to be a move forward in challenging and changing the face of television as he has been doing for years. So thank you very much, Puneet, and thank you, Siddharth, and thank you, Rosa, and thank you the whole team for giving me this opportunity. And I've forgotten what else I have to do now. You will remind me, please. Well, मैं कहने वाली थी कि हम सब यहाँ बात कर रहे हैं जश्न जीने का, और जहाँ आप हैं हमारे साथ, तो I think जश्न वहीं शुरू हो जाता है. Ladies and gentlemen, a round of applause for King Khan. Thank you so much for being here. So I'm not letting you go anywhere. मैं जा ही नहीं रहा था, मैं ऐसे ही बाव कर रहा था. I'm going to request Mr. Puneet Goenka and Mr. Rajesh Iyer to kindly come up on stage for the question and answer round. कब जा रहा है चैनल, एंड व्हेन इट कम्स टू द टारगेट ऑडियंस व्हाट विल दैट बी? और एक सवाल ये है कि आपका थीम क्या रहेगा? लाइक हमेशा हर एक चैनल का थीम रहता है, सो व्हाट काइंड ऑफ थीम्स डू यू हैव फॉर दिस चैनल? किसको पूछ रहे हैं आप? आपको ही सर. मुझे? अच्छा, आप ही की कंपनी में काम करती हैं, आप ही से पूछ रही हैं. सो ये चैनल लॉन्च होगा मार्च में. एग्जैक्ट डेट अभी हम बता नहीं रहे हैं. 24 तारीख को ऑन एयर दिखेगी वो डेट, कब ये लॉन्च होगा एग्जैक्टली. इसकी टारगेट ऑडियंस, जैसे कि राजेश ने बताया, इज़ द मॉडर्न इंडिया, कंटेम्प्रेरी इंडिया. इसमें कहानियाँ थोड़ी, शाहरुख भी बता रहे थे, एजी होंगी. हम लोग डिस्कस करते रहते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो हम ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म, जी जैसे ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकते हैं. उसके लिए हमने एक नया प्लेटफॉर्म खड़ा करने की कोशिश की है. और आपका लास्ट क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गया. सैलरी रेस कब मिलेगा सी वालों? नहीं, ये चैनल लॉन्च हो जाए उसके बाद डिसाइड करूँगा. सर मुझे जानना था कि क्या थीम या ऐसे कुछ है इस पर्टिकुलर चैनल का? यूजुअली फन होता है, कॉमिक होता है. इन्होंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया था जश्न जीने का, इट इज़ अबाउट सेलिब्रेटिंग लाइफ इटसेल्फ. दैट इज़ द थीम ऑफ द एंटायर चैनल. पुनीत जी, आपसे मैं ask the photographers, is the lighting strange on our faces? थोड़ा आगे हो जाए. पुनीत जी, आपसे एक सवाल था. आपके इतने सारे चैनल्स हैं, जीसी ऑलरेडी आपके हैं, तो क्या वजह थी इसको लॉन्च करने की? देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया में ऑडियंसेस डिवाइड होती जा रही हैं. लोगों के माइंडसेट्स चेंज होते जा रहे हैं. कुछ लोग हैं जो ट्रेडिशनल माइंडसेट के हैं, कुछ हैं जो कंटेम्प्रेरी माइंडसेट के हैं, who want to experiment with new content and more different content which is not currently available on television. तो ये उस ऑडियंस को देख के हमने क्रिएट किया है. मैं तो ये मानता हूँ कि डिजिटाइजेशन के माध्यम से जो फ्रैगमेंटेशन होने वाला है, rather than getting fragmented, I should lead the fragmentation. शाहरुख, आपको आज तक किसने शान पट्टी दिखाई है? मुझे आप दिख नहीं रही. हाँ, तो मुझे नहीं दिखाते ज़्यादा कोई. मेरा रेपुटेशन ऐसा हो चुका है, मैं कभी भी कहीं भी चले जाता हूँ. मैं
तो मैं खुद ही बहुत शाना हूँ। नहीं, मुझे कोई शान पट्टी नहीं दिखाता है, मुझे सब प्यार से मिलते हैं, मैं भी सबसे प्यार से ही मिलता हूँ। एंड ज़्यादा नहीं दिखाते शान पट्टी। एक्चुअली ये शान पट्टी होता है या पत्ती, मैं पूछना चाहता हूँ, बिकॉज शान पट्टी 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 ना, ओके हाँ ठीक है, फिर मैंने ठीक बोला है ट्रेलर के अंदर। तो आपने दिखाया है कभी किसी को? नहीं, मैं ज़्यादा दिखाता ही नहीं मैं। गौरव इज बैक। उर्वा, आपने मुझसे सवाल पूछे तो मैं आपसे भी पूछूंगा। Okay. My question is also for Puneet. Puneet, in the past we have seen some launches in the same space which have not worked very well, and last time we spoke you were talking about segmentation and all. You yourself said that fragmentation going to increase with this. So what gives you confidence to launch one more GC in the same space where there are so many channels, and is the time right? So I'm assuming आप रेफर कर रहे हैं मेरे ही चैनल से जो चला नहीं था कुछ साल पहले, उसी की बात कर रहे हैं, राइट? ज़ी नेक्स्ट की। जी। तो मेरा मानना ये है कि ज़ी नेक्स्ट नहीं चला क्योंकि वो बहुत अर्ली था, वो अपने समय के पहले ही आ गया, तो प्री मैच्योर बेबी बॉर्न हो चुका था, इसलिए वो मर गया बेचारा। नाउ जो ये चैनल है, मुझे लगता है कि विद डिजिटाइजेशन दिस मार्केट सेगमेंटेशन हैज स्टार्टेड टू हैपन। अगर आप देखें आज की डेट में जॉनर स्पेसिफिक चैनल्स आ रहे हैं और सक्सेस भी हो रहे हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इसमें ये चलेगा। और कॉन्फिडेंस कैसे आता है मुझे, ये फ्रंट के 2 रो में जो जितने लोग बैठे हैं, NTV की टीम, इनकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस आता है। Rajesh, hi, Prachi here from AFAX. Hi, I have 2 questions for you. So you, first of all, I want to understand that how different will be the content as compared to other channels' content, and also you are saying that it's a modern and it's for a modern contemporary India. Contemporary modern India. Are you positioning it something like a youth GEC by any chance? No, we're not positioning it as a youth GEC. We're a mainline GEC. To answer your question, how are we different? We don't want to be different for the sake of being different, right? So what we believe is good content is good business. As long as we can put in good content and that is accessible to people, and if our distribution plot is strong enough, which it is, right, I think so people will start consuming us. So my answer to your question is we don't need to be different for the sake of being different. Yes, we do have differentiated products in our kitty that will give us, you've seen a few of that. As long as we have good content, entertaining content, and the right distribution, I think so we'll make it, we'll cross the line. What will be the USP of ANTV then? So like Puneet said, it's contemporary, right? So it's contemporary, it's new age. We will, like I said, jaise hai aap, waise hai hum, right? We will reflect you, you are our brand, right? If you change tomorrow, we will change along with you. So that's what we are. Thank you. Shahrukh, my question is to you. Bollywood में आपको छोड़ के, हाँ. So Bollywood में आपको छोड़ के सबसे शाना कौन है? One male actor and one female actor, and why? I don't know यार, मैं किसी का नाम लूँगा, फिर कुछ और बात निकलेगी, फिर कुछ दूसरी बात निकलेगी, फिर मैं यहीं पर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आऊँगा, उसकी सफाई दे रहा हूँ मैं यार। मैं डे नाइट शूटिंग कर रहा हूँ इस शो के लिए, तो मैं थोड़ा सा नींद में भी हूँ, तो तकलीफ मत मुझको ऐसे सवाल पूछ के। बट जो शाने का कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बता देता हूँ, फिर तुम पूछो कि शाना कौन। हमारा जो शाने का कॉन्सेप्ट मैंने जब बताया कि ऐसा नहीं है कि जो कान पट्टी पे देता है, ऐसा सब नहीं, सिर्फ द आइडिया इज़ येस यू हैव टू बी इंटेलिजेंट, यू हैव टू बी स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट, जो शाना है वो कॉन्टेक्स्ट में है। लेकिन दूसरी बात जो मुझे सारी क्रिएटिव टीम, एन की क्रिएटिव टीम और बिग सिनर्जी की टीम ने बताया है, वो ये है जो शान से जीते हैं, शान से बात करते हैं और शान से मानते हैं कि उनको सब कुछ जानते हैं, और अगर नहीं भी जानते, जैसे मैंने कहा, फिर भी मानते हैं कि सब कुछ जानते हैं। एंड ये जो शो है, इसके अंदर सारी शान पट्टी दोनों तरफ से एकदम कॉमनर्स, जैसे आपने देखे थे स्क्रीन के ऊपर आकर, कॉमन सा सवाल पूछते हैं, एकदम आम आदमी वाला सवाल पूछते हैं, और जो जवाब दे रहा है वो भी आम आदमी है या चीटर है जो सूजी वाली चीटिंग की थी अभी, ऐसा है। बट द होल आइडिया इज़ दैट शाना इज़ फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शानदार एंड शान से। सो शान से तो बस मैं ही हूँ, और तो कोई है नहीं, तो इसलिए मैं दूसरे किसी एक्टर का या एक्ट्रेस का नाम नहीं लूँगा। ऐसे बहुत पंगे हो जाते हैं यार, वो दोनों भी जो साथ में आजकल लड़के दोस्ती है जिनकी गॉसिप कर रहे हैं, वो जागरण और भास्कर से, उनका भी बहुत है, ये सब मैं अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं सब कुछ। वो हो तुम दोनों आगे फिर से
जुड़वा। पुनीत जी, ये प्रश्न आपसे है मेरा। जब आप एक पूरे के पूरे नेटवर्क को ऑपरेट कर रहे हैं और आपके पास बहुत सारे, हम सोचते हैं कि यार कहीं ना कहीं तुलना हो रही है, तो आपका जब अपना एक प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पहले इस कंटेंट को आप इस्टेब्लिश करते, दर्शकों का रिस्पांस लेते, नया चैनल लाने की कोई ख़ास वजह? और दूसरा सवाल इसके साथ ये है कि जश्न तो ज़िंदगी के हर मोमेंट में होता है, हर लम्हे में होता है। दुख का भी अपना एक उल्लास और उत्साह और उत्सव होता ही है। तो जश्न में नई बात क्या होगी? क्योंकि ऑलरेडी जी पर जश्न हो ही रहा है, ज़िंदगी पर जश्न हो ही रहा है और एंड पिक्चर्स पर भी जश्न हो रहा है। तो यहाँ जश्न के क्या मायने हैं? तो सबसे पहले जो आपने पूछा कि नया चैनल लाने की क्या ज़रूरत है, इसी कंटेंट को आप जी पे क्यों नहीं दिखा सकते? मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये नए ज़माने का चैनल है। मैं ये कहता हूँ कि ये कुछ लोग जिनकी सोच अलग है उनके लिए चैनल है। इसमें जो एजी कंटेंट हम बात करें, आपने देखा बेगूसराय जैसे शो है, मुझे नहीं लगता कि वो जी पे चलेगा, बट मुझे लगता है कि वो इस प्लेटफॉर्म पे ज़रूर चलेगा क्योंकि लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। जी के साथ एक ब्रांड ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है उसका, तो उस पर एक्सपेरिमेंट करना इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन टू क्रिएट अ न्यू प्लेटफॉर्म इटसेल्फ। हमने ये सारा कंटेंट जितना आपने देखा और भी ज़्यादा हमने सब रिसर्च किया है, मार्केट्स में जा के बहुत एक्सटेंसिवली रिसर्च किया है, उसके बाद ही डिसीजन लिया इसको लॉन्च करने का। तो ये मेरा जवाब है। Hi, I'm Seema Singh from IndianTelevision.com. My question first is to Mr. Iyer. Sir, how many hours of content in the beginning will we see? And are you revealing the time slot? Is it a prime time or what is it? Obviously, it's going to be prime time, but you'll get to know about it very soon. We are in line with every other mainline GEC. So we'll have 20 odd hours, 21 plus hours on, of fresh programming. And I had a question for Shahrukh as well. Shahrukh, what made you come back to television and that too with the game show again? To be really honest, one, perhaps I've not had the time. That's a nicer way to put it. Or I've not had interesting enough offers. I have been one person who, Siddharth knows me and Puneet Saab and everyone. I like this question-answer formats. I'm not, you know, I think all the programs are very good, which are not question answers also. But I do that with my children. I do that with my friends all the time. And I find it very interesting. I find it fun if it can be presented in a way that it does not seem like that you're partaking or giving away general knowledge. It just seems you're having fun, getting to know things. And so I always wait for something if that can happen. And on a platform with people where the team is someone, I'm a little spoiled as an actor or as a performer. I like to work with people who are like family and happy and take a little bit of my unprofessionalism. So I waited for that opportunity, and I think you know, it's not a serious-minded quiz show like I have hosted before, which Amitji does now, KBC. It's not just you know, Panchvi Past Ite, which is for children-oriented, which can actually stump you because that one was really difficult, to be really honest. It's a very common platform where everyday things are going to be asked. So it's in the more fun zone and still question-answer. I like those kind of shows. So there are 2 or 3 reasons. One, nothing as interesting has been offered. Second, perhaps I have not had the time span to do it. And third, I did not get a setup like ANTV, Z, and Siddharth again, which I honestly say, I'm not saying it because he's a friend. Genuinely, if you have to do a game show, you have to do it with Siddharth and his team. And when all of that fitted in, and with due respect, I'll again say, and this is wrong, I still don't have the time, but I'm going to take out this time and finish this off. I'll work around the clock because this is really, really exciting. शाहरुख सर, आमिर, शाहरुख, ठीक आपके सामने यहाँ ठीक साहब। शाहरुख, पुनीत जी, ऑल्सो राजेश जी, आप तीनों से जानना चाहता हूँ कि आप तीनों में सबसे ज़्यादा शाना कौन? आप तीनों आपको क्या लगता है? नहीं, यही है और कौन हो सकता है? अच्छा ठीक है, पैसे कम ले लेता हूँ यार, ये क्या थोड़ा सा नेगोशिएट क्या कर लिया, शाना बोल रहे तुम लोग यार। शाहरुख, आप एग्री करते हैं कि आप शाने हैं?
पुनीत जी ने तो बोल दिया, आई थिंक राजेश जी ने भी बोल दिया, लेकिन आप अग्री करते हैं कि हाँ मैं सबसे ज़्यादा? जी, मेरे बॉस जो बोलते हैं, बॉस इज ऑलवेज राइट, इन्होंने कह दिया है तो हाँ जी, ये पहला रूल है एन टीवी और जी के लिए और सिद्धार्थ के लिए काम करना। जी हजूरी बहुत करनी पड़ती है, तो आप शाने हैं, आप खाने हैं, आप लाने हैं, आप पाने हैं, जो बोल दो सर आप। तो अभी सुन रहा हूँ, बाद में बात करूँगा बाहर जाके इनको। अच्छा शाहरुख, जब घर पे होते हैं आप फैमिली के साथ, गौरी मैडम होती हैं, बच्चे होते हैं, जब कुछ नोक-झोंक होती है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा शाना बनकर कौन निकलता है? कुछ आप समझ रहे हैं आप? मैं क्या बिल्कुल नहीं समझ रहा हूँ। नहीं, मेरा मतलब है माँ कसम बिल्कुल नहीं समझ रहा हूँ दोस्त। तो किस तरफ ले जा रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, मुझे पता नहीं है, लेकिन कोई किसी को नहीं समझ आया ना। लेकिन अभी मेरे को ऐसा, जो हमारा सारा जो घर का माहौल है इस वक्त सेंटर्ड अराउंड जो हमारे घर में जैसे एन टीवी है, हमारा जो नया प्लेटफॉर्म है अब्राम है, सो एंड अब्राम है जो, तो आई थिंक सारा घर का माहौल उसी के अतराफ रहता है। हम लोग सभी वी आर ऑल उसी से आकर्षित रहते हैं, तो उसकी जो छोटी बातें हैं जो वो करता है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें वही लगती हैं, सबसे शानी चीज़ें भी वही लगती हैं। और छोटा है तो पहला वर्ड भी बोलता है, पापा बोलता है, कुछ भी बोलता है। तो शाहरुख भी बोलता है वो चाकू, तो उसकी हर बात शानी लगती है, अच्छी लगती है। सो आई थिंक एट दिस पॉइंट इन टाइम इन अ हाउस एवरीथिंग इज सेंटर्ड अराउंड अब्राम, द होल फैमिली। सो आई थिंक आई डोंट नो वो शाना है कि नहीं है, बट स्वीट बहुत है। थैंक यू। शाहरुख सर है आपके लेफ्ट, अमित अगेन। शाहरुख सर, आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के तो किंग हैं ही, टीवी इंडस्ट्री के भी किंग बनना चाहेंगे कोई जीईसी ला करके? मैं एक दूसरी बात तेरे दोस्त के लिए भी आंसर दूंगा जिनसे पूछा था। जब किसी स्फेयर में आदमी लीडर होता है, और मैं आउटसाइड पॉइंट ऑफ व्यू बोलना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि जी के लिए है या कोई और चैनल के लिए। आई थिंक दिस बिकम्स द जॉब एंड द ड्यूटी ऑफ लीडर्स टू गिव चॉइसेस टू ऑडियंसेस। और जैसा आपने कहा कि ये जी के प्लेटफॉर्म पे ये शो को ला सकते थे, और हो सकता था उस पर भी चलता था, जो प्रोग्रामिंग है इस पे ला सकते थे, बट देन यू कांट हैव दे वांट टू गिव यू 20 hours of a certain kind of entertainment, and then they've gone on to another platform which is and TV, whether it's edgy, contemporary, different, but they're trying to give you choices at your time. This medium and entertainment is going to be a little more, not only just interactive, it is all going to be about the convenience with which you can watch what you feel like watching. So I think it is the duty and job of people like Z Entertainment, and they're doing it so well that they're giving you different platforms and choices for entertainment. I think that's the main reason, apart from जो भी market की बातें होती हैं. As far as ये बड़ा अच्छा हुआ कि मैंने ना जो सवाल मुझसे पूछा नहीं गया उसका जवाब दे दिया, जो मुझसे सवाल पूछा गया मैं भूल गया। मैं याद दिला देता हूँ। हाँ, च्यवनप्राश खा के। हाँ, नहीं मैं समझ गया, अब याद आ गया मुझे। मैं भी इतना कम शान नहीं हूँ मैं। यस, आई वुड लव टू। मैं बहुत बार जितने भी टीवी इंडस्ट्री में हैं, फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं, हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं, लेकिन हमारा जो नज़रिया है टेलीविज़न का, और पुनीत ने मुझे बताया है, सिद्धार्थ ने बताया, हम बहुत बारी बातें करते हैं, हम सब एक ही मीडियम से हैं तकरीबन। हमारा जो नज़रिया है कि क्या टेलीविज़न के ऊपर चीज़ है जो सक्सीड करेगी इन टर्म्स ऑफ फिक्शन, इज़ व्हाट यू मेंशन। आई थिंक आई डोंट थिंक मेरी इतनी उसमें समझ है। सो व्हाट यू नीड इज़ अ सिनर्जी और टुगेदरनेस of a team from television and team from films, and both kind of give and take, and then they'll be able to create a much more unique program or a unique fiction, non-fiction show which would work both ways. क्योंकि finally बहुत expensive business है, film making and television making, and spending monies on beaming them down. I think it's very important that people get together. कभी-कभी मैं देखता हूँ कि फिल्म वालों की creativity television पे आ जाती है, फिर सब अरे यार ये क्यों नहीं जम रहा है, क्यों नहीं हो रहा है. There is a certain audience for a certain kind of programming. I think television industry and the film industry, we have to really, really synergize and understand, respect each other. कि we can't look down upon one or the other. And the expenditure, film वाले आते हैं कि हम तो बड़ा महंगा बनाएंगे, क्यों बनाओगे यार? It has to be worked out like that. I think then only it will happen, and soon it will happen. I think it is already happening. I think there are already inroads. You have good thinking people in television and films who like to come, and I genuinely believe, I'm from television myself. And yes, it's ironic कि मैंने टेलीविज़न से शुरुआत की है, और टेलीविज़न पे अभी तक मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे मैं चमक जाऊँ. इंशाल्लाह ये शो जो है उतना अच्छा होगा. But I would really like to participate and give back to television what television has given to me, and I think it's important to do it. Mr. Iyer? Puneet sir,
All right, I'm going to request that to be the last question. For me. 3 पूछ लेते हैं। पुनीत सर, या एक सवाल आपसे कि जितने मतलब GECs हैं अभी एक्सिस्टिंग इस दौर में, मौजूदा दौर में जितने, अब जा रही आवाज? हाँ जी हाँ, जितने मतलब GECs हैं इस वक्त, आगे आने वाले समय में और कितने GECs की गुंजाइश आप पाते हैं, या इतने मतलब सैचुरेशन लेवल आ चुका है टीवी इंडस्ट्री का? देखिए, ये तो समय ही बता सकता है कि कितनी पोटेंशियल बाकी है। पिछले 2 सालों में ही हमने देखा है कि GEC की कंजम्पशन लगभग 15 से 20% बढ़ गई। दिस इज ड्रिवन बाय कि इतने सारे GECs आए हैं मार्केट में। तो इसका पोटेंशियल क्या है ये तो समय ही बता सकता है। आज जो आपका करंट रेटिंग सिस्टम है हमारे देश में, वो सिर्फ 60 मिलियन घर कवर करता है, जबकि हम सब जानते हैं कि टेलीविज़न लगभग 160 मिलियन घरों में जाता है। तो जब वो 160 मिलियन घर ट्रैक होने शुरू होंगे, उनकी क्या लाइक्स डिसलाइक्स होंगी, वो क्या सेगमेंटेशन बनेगा GEC स्पेस में, तब जाके मालूम पड़ेगा इसका। तो आई थिंक गिव इट मे बी अ ईयर और 2 जब तक कि नया रेटिंग सिस्टम इस्टेब्लिश होता है हमारे देश में, उसके बाद इसका आंसर बहुत शायद मिल पाए। हाय शाहरुख, या Anand here from Sorry, Navara. sir, I'll have to intervene there. Do we have more time for one more question? One last question. One last question. Let's take these 2. There's one and one. Let's take last 2, 3. Hi Shahrukh, Anand here from Navara Times. Hi Anand. शाहरुख, कुछ साल पहले आपका भी ऐसा एक सिंपल क्विज शो आया था, क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, तो आप इस शो को लेकर कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, और क्या ये लगता है आपको उससे कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएगा? जी, हम जितने भी लोग इसमें काम कर रहे हैं, या 5वीं पास भी था, मुझे ऐसा, यार मैं ऐसा बोलूं कि बोल सकता हूं मैं कि हाँ टीम बहुत अच्छी है और हम सब लोग मिलजुल कर इसको बहुत सक्सेस बनाएंगे। बट आई थिंक जिस जगह पर मैं हूं वहां से मैं सक्सेस को नहीं देखता हूं, मैं खुशी को देखता हूं कि मैं कितनी बांट सकूं, उसमें कितनी मेहनत कर सकूं, और फिर यही दुआ कर सकता हूं कि आप लोगों को पसंद आए। एंड आई एम नॉट बीइंग हम्बल और मॉडेस्ट अबाउट दिस। येस, वी वुड लाइक इट टू डू वेल। ये इजरायली फॉर्मेट है जो ले रहे हैं, पहली बार शायद इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन दुनिया में इसको दिखाया जा रहा है इंडिया के अंदर। तो नॉवल है ऑफ कोर्स। मैं पूरी कोशिश करूंगा, जो टीम है, जो प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा है। आई थिंक इससे बड़ा प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता है। तो हर चीज़ है, अब बस हमारा जैसे बोलते हैं सिक्का बैठ जाए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। सब कुछ है, बहुत अच्छे सेट हैं, बहुत अच्छी रिसर्च टीम है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं भी बहुत अच्छा हूँ, लेकिन सब कुछ मिलजुल कर इंशाल्लाह कभी कभी ठीक होता है, कभी नहीं होता है। बट आई थिंक ऑल द इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग इट अ सक्सेस, and success not measured only in terms of the ratings and stuff, success in terms of how much we will entertain people. That is the measure of success. So hopefully this will be the most successful show I've done in terms of entertaining more people than I've ever done before. Sir. Last question. All right, the last question. Yes, ma'am. You said your content is very contemporary. So will you be competing with Zee TV as well? It's a good question. Yes, the answer to that is yes. It's like this, right? When Serena Williams and Venus Williams play, there is sibling rivalry, right? We will play to win, and when the time comes, we'll also play doubles to beat the other networks. So yes, that's what we're going to do. Thank you, Rajesh. Thank you, Rajesh. Thank you so much. With that, ladies and gentlemen, we're going to call it a wrap to the question and answer session. Can I now invite the entire AND TV Parivar to join me on stage for a grand photo op? जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं पूरे के पूरे AND TV के परिवार का। जश्न जीने का, जश्न जीने का, हाँ जीने का, जश्न। May I request all our show producers from AND TV also to join us for this photo op? जश्न जीने का, जश्न जीने का, हाँ जीने का, जश्न जश्न। जश्न जीने का, जश्न जीने का, हाँ जीने का, जश्न जश्न। हम एक जुनू है, हम एक जिद भी, हम तो है जश्न जीने का, जश्न जीने का, जश्न जीने का, हाँ जीने का, जश्न जश्न। हम एक जज्बा, हम एक मिसाल है, हम तो है जश्न जीने का, जश्न जीने का, जश्न जीने का, हाँ जीने का, जश्न जश्न। जश्न जीने का, जश्न जीने का, हाँ जीने का, जश्न जश्न। उम्मीदों की आतिशबाजी, सपनों का शोर शराबा, खुशियों का भीड़ भड़ाका, मस्ती की गर्मा गर्मी। जश्न जीने का, जश्न जीने का, हाँ जीने का, जश्न जश्न। जश्न मस्ती का, जश्न जीने का, हाँ जीने का।
है जश्न जीने का, जश्न जीने का, जश्न जीने का, हाँ जीने का, जश्न जश्न, जश्न जीने का, जश्न जीने का, हाँ जीने का, जश्न जश्न। उम्मीदों की आतिशबाजी, सपनों का शोर शराबा, खुशियों का भीड़ भड़ाका, मस्ती की गर्मा गर्मी, जश्न जीने का, जश्न जीने का, हाँ जीने का, जश्न हो जश्न मस्ती का, जश्न जीने का, हाँ जीने का, जश्न जश्न है जश्न जोश का, जश्न जीने का, हाँ जीने का, जश्न जश्न, जश्न जीने का, जश्न जीने का, हाँ जीने का, जश्न जश्न, जश्न जीने का, जश्न जीने का, हाँ। Thank you, Mr. Iyer. Thank you, Shahrukh sir. Thank you so much. Ladies and gentlemen, it's been a phenomenal evening so far. Thank you so much for being present with us. I'm going to now request all our friends from the press to kindly proceed to the adjacent studio as we have some refreshments and tea served for you. Requesting all of you to grab a bite before you leave. This is Avneet Kohli taking your leave for the day. Thank you so much. जश्न जीने का, जश्न जीने का, हाँ जीने का, जश्न जश्न, जश्न जीने का, जश्न जीने का, हाँ जीने का, जश्न जश्न, जश्न जीने का, जश्न जीने का, हाँ जीने का, जश्न जश्न, जश्न जीने का, जश्न जीने का, हाँ जीने का, जश्न जश्न। हम एक जुनू है, हम एक जिद भी, हम तो है जश्न जीने का, जश्न जीने का, जश्न जीने का, हाँ जीने का, जश्न जश्न। हम एक जज्बा, हम एक मिसाल है, हम तो है जश्न जीने का, जश्न जीने का, जश्न जीने का, हाँ जीने का, जश्न जश्न, जश्न जीने का, जश्न जीने का, हाँ जीने का, जश्न जश्न। उम्मीदों की आतिशबाजी, सपनों का शोर शराबा, खुशियों का भीड़ भड़ाका, मस्ती की गर्मा गर्मी, जश्न जीने का, जश्न जीने का, हाँ जीने का, जश्न हो जश्न मस्ती का, जश्न जीने का, हाँ जीने का, जश्न जश्न है जश्न जोश का, जश्न जीने का, हाँ जीने का, जश्न जश्न, जश्न जीने का, जश्न जीने का, हाँ जीने का, जश्न जश्न, जश्न जीने का, जश्न जीने का, हाँ। जश्न जीने का, जश्न जीने का, हाँ जीने का, जश्न जश्न, जश्न जीने का, जश्न जीने का, हाँ जीने का, जश्न जश्न, जश्न जीने का, जश्न जीने का, हाँ जीने का, जश्न जश्न, जश्न जीने का, जश्न जीने का, हाँ जीने का, जश्न जश्न। हम एक जुनू है, हम एक जिद भी, All right, ladies and gentlemen, do not worry. हमारे सारे जो फोटोग्राफर्स हैं आप टेंशन ना लें, थोड़ी सी फोटोग्राफ्स हम खींच रहे हैं, आप सबको मौका वन ऑन वन इंटरेक्शन का दिया जाएगा, सो आप टेंशन ना लें। और इतनी खुशी का माहौल है यहाँ, जश्न का माहौल है, चीखना चिल्लाना गाली गलोच सब बाद में ते अच्छी तरह। मस्ती की गर्मा गर्मी, जश्न जीने का, जश्न जीने का, हाँ जीने का, जश्न हो जश्न मस्ती का, जश्न जीने का, हाँ जीने का, जश्न जश्न है जश्न जोश का, जश्न जीने का, हाँ जीने का, जश्न जश्न, जश्न जीने का, जश्न जीने का, हाँ जीने का, जश्न जीने का, जश्न जीने का, हाँ। Requesting the जश्न जीने का, जश्न जीने का, हाँ जीने का, जश्न जश्न, जश्न जीने का, जश्न जीने का, हाँ जीने का, जश्न जश्न, जश्न जीने का, जश्न जीने का, हाँ जीने
Something? Yeah, it does actually. It is for Sabse Shana Kaun. Yeah, that's what I think. They're designing all the brooches and crests. I like this whole idea of crest, so I think they're designing clothes with crest on them for me for the show. शाहरुख, आपने शुरुआत टेलीविजन से की और आज आप बॉलीवुड के किंग भी हैं। कितना मिस करते हैं उस मोमेंट और आज किस तरह से आप देखते हैं? इतना बदल चुका है तब से लेकर अब तक। एक्चुअली मुझे वक्त नहीं मिलता है, लेकिन मेरा बहुत दिल करता है कि मैं टीवी पे काम करूँ। मैं किसी भी तरीके से, मतलब चाहे अवार्ड फंक्शन होस्ट कर रहे हैं या ऐसा एक गेम शो है जो बहुत खूबसूरत है और इवन फिक्शन है, लेकिन आई थिंक वक्त का तकाजा है, तकलीफ रहती है, टाइम नहीं मिलता है और बुरी आदतें पड़ गई हैं कि सिर्फ फिल्म ही बनाते रहो। बट आई वुड रियली लाइक टू वर्क ऑन टेलीविजन। आई सी लॉट ऑफ स्टफ ऑन टेलीविजन। ज़रूरी नहीं वही जो हमारे इंडियन टीवी पे है, मैं इंटरनेशनल टीवी भी देखता हूँ। मुझे बहुत शौक़ है कि कुछ ना कुछ मैं टेलीविज़न के अंदर करूँ जो क्रिएटिव है, लेकिन एक दो बार कोशिश भी की और बहुत बुरी तरह से फेल भी हुआ, क्योंकि आई थिंक मुझको इतना नॉलेज नहीं है कि टेलीविज़न ऑडियंस बदल गई है या बदलती रहती है या रेगुलरली उसको ना टेलीविज़न इज़ ऑन द टोज़ कि चेंज करना पड़ता है, फिक्शन को बदलते रहना पड़ता है मौके के हिसाब से। जब हमने किया था फौजी और दिल दरिया या सर्कस या उम्मीद, वागले की दुनिया, आई थिंक तब नया था टेलीविज़न, तो ऑडियंस को इतना चॉइस नहीं था, तो तकरीबन जो चीज़ें बहुत अच्छे प्रोग्राम्स भी थे। सो आई थिंक दे यूज्ड टू सक्सीड एट अ डिफरेंट लेवल। अब इतना चॉइस हो गया है, सो एवरी टाइम यू हैव टू कीप चेंजिंग। बट आई थिंक कुछ सालों में, मैं हर बार ये बोलता हूँ हर 5 साल, लेकिन इतना चेंज आता नहीं है, बट आई थिंक थ्रेशोल्ड बदल रहा है और 100% टेलीविज़न के अंदर कुछ ना कुछ नई चीज़ होगी। एंड आई लव टू बी, मैं हमेशा ये कहा है कि एक्टिंग का जो प्लेटफॉर्म है वो ज़रूरी नहीं होता क्या है, चाहे वो टीवी है, थिएटर है, स्टेज है, सड़क है, फिल्म है, आईमैक्स है। आई थिंक एक्टर को हर जगह पर जाकर, और टीवी जो है बहुत ही आई थिंक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म मीडियम है। हम अपनी फिल्में जब सैटेलाइट पे करते हैं, दे आर सीन नियरली एज मच और इवन मोर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑन टेलीविज़न। कुछ मुझे लोग बता रहे थे कि जैसे अगर हमारी जो बड़ी हिट फिल्म होती है 3-3.5 करोड़ रुपये थिएटर में, 3-3.5 करोड़ लोग थिएटर में देखते हैं, तो टेलीविज़न पे 9-10 करोड़ लोग देखते हैं। सो ऑब्वियसली रीच ज़्यादा है, so one should try as an entertainer to be part of that. Shahrukh, but if you had to come back into the fiction space again, which particular genre would you choose, to make a comeback again? Would it be the Saas Bahu dramas or something as real as what Mr. Bachchan did with you? What would you choose? What would be a hit with the audience? I'd like to do a thriller यार, जैसा अब ऐसा मुझे एक आता था जो आई थिंक मून लाइटिंग पे बेस्ड था, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, किट्टू किडवानी जी थी उसमें। एक मून लाइटिंग सीरियल था शायद अमेरिकन, एंड उसके ऊपर बेस किया था। वाज इट मिस्टर धवन एंड किट्टू किडवानी? नहीं, बहुत फेमस सीरियल था, दोनों डिटेक्टिव्स थे, लड़ते रहते हैं लेकिन दे कीप ऑन। नहीं करमचंद नहीं, करमचंद भी बहुत अच्छा था। आई थिंक करमचंद इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक अपने वो धवन थे जो नुक्कड़ में भी थे, ही इज़ नो लॉन्गर देयर, बट ही एंड किट्टू किडवानी if I'm not mistaken. तो वो उनका ऐसा, I'd like to do a thriller, interesting things, because सास बहू वगैरह आई थिंक सोशल ड्रामास मैंने किए हैं, फिल्मों में किए हैं, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि उसमें मेरी स्पेस हो सकती है कि नहीं हो सकती। हिस्टोरिकल्स मुझको थोड़ी तकलीफ लगती है, बहुत कपड़े मूछे लगानी पड़ती, बट I'd like to do something which is more thrilling or detective or create a character. मेरी इतनी पहुँच नहीं है, लेकिन जैसे करमचंद कैरेक्टर थे, इट बी वेरी इंटरेस्टिंग टू क्रिएट समथिंग लाइक। इस दौर का कोई सास बहू ड्रामा आप देखते हैं? सास बहू ड्रामा इस दौर का कोई देखते हैं आप? शाहरुख, आपने बात दिखाई, मैंने मतलब कभी वो टीवी पे जो ऐसे स्निपेट्स आते हैं मैंने देखे हैं, और कई बार मैं प्रोग्राम्स पे आता हूँ टेलीविज़न के, और आजकल जब होस्टिंग करते हैं तो टीवी से मिला जुला होता है, तो लोगों से मिलता हूँ, लेकिन फिर मैं पहचान जाता हूँ कि इनको मैंने वहाँ देखा है, लेकिन नहीं, मैंने नहीं देखे, मैंने ऐसे पूरा कोई भी शो नहीं देखा। अमूमन obviously shows, the sports 100%, news 100%. In terms of shows, मैं ज़्यादा वेस्टर्न टेलीविज़न देखता हूँ मैं, सो हाउस ऑफ कार्ड्स, या अभी जो मैंने नया देखा है फार्गो, एक फिल्म के ऊपर बेस्ड है। द रीज़न ऑल्सो बीइंग कि वो अभी साथ में मिलता है तो मैं शूटिंग पे देख सकता हूँ, वो घर के अंदर बैठकर रेगुलरली देखना आई थिंक थोड़ा मुश्किल भी होता है। सो सम ऑफ द चिल्ड्रंस प्रोग्राम्स आई सी अर्लियर, बट नॉट वेरी मेनी। शाहरुख, फिल्मों में इतने बिजी हैं, फिर शान पट्टी करना क्या खास वजह रही आपने, कैसे वक्त निकाल लिया? एक्चुअली
मैंने जैसे बोला कि काफ़ी सारे टीवी शोज़ जब भी मुझसे बोलते हैं कि करो, तो वो हमेशा होता है कि मैं 2 महीने निकाल के करूँगा, यू नो। बट ये क्या है, मुझे ऐसा लगा मैं इस वक्त एक ही फिल्म कर रहा हूँ, फ़ैन, और इंशाल्लाह इस मंथ के एंड तक जो उसका मेन पोर्शन है, जो डिफ़िकल्ट पोर्शन है उस फिल्म का, क्लाइमैक्स वगैरह, वो ख़त्म हो जाएगा। तो क्योंकि वो ख़त्म हो रहा था और हमारा शूटिंग जो है इस शो का आई थिंक 5 या 6 फरवरी से, पहले 7-8 दिन, सो आई थॉट कि मैं इसको फिट कर सकता हूँ, एक ही फिल्म है, और आई थिंक लोकेशंस भी मोर और लेस सेम है हमारी फ़ैन की, तो मैं जा सकता हूँ वहाँ से, तो वक्त निकालना मुनासिब हो गया। अगर दूसरी शुरू कर लेता अभी रईस या कुछ, तो फिर मुश्किल होता है, और मैं ये सोचता हूँ कि यार 1 महीना निकाल के शो करूँगा, बट उस चक्कर में होता ही नहीं है। So this time I think everybody planned it around me also. I think the whole Z family and Siddharth, they said we'll plan it here. Let's do it like this that we can figure out some time. वो फिल्म भी अपनी है, यशराज की है, so I could work out that time. शाहरुख आपके शो की अगर बात करें तो कौन से स्लॉट पे होगा और कौन सा स्लॉट आप चाहते हैं? मुझे मालूम नहीं है, आई थिंक वो डिटेल्स एन टीवी और इनको ही मालूम है प्रोग्रामिंग के हिसाब से, अय्यर साहब को, मुझे भी बताया नहीं है, बट आई एम अज्यूमिंग अच्छा ही स्लॉट होगा यार, मेरे साथ शो बना के बुरे स्लॉट में क्यों डालेंगे। शाहरुख की बात कीजिए, आप रोमांटिक किंग है, अगर टीवी में कोई एक ऐसा शो आता है जिस पर आप रोमांस करते नजर आए तो आप वो शो करेंगे? या मतलब वो तो मुझे अब तो मैं नींद में करता हूँ रोमांस, तो हाँ वो कर दूंगा मैं, अगर बट इंटरेस्टिंग होना चाहिए यार, कुछ कहानी होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा मिक्स होना चाहिए, इट शुड बी रोमांटिक एंड थ्रिलिंग, लिटिल डिफरेंट फ्रॉम वॉट जो अभी टीवी में होता है। मुझे मालूम नहीं है वो चलेगा कि नहीं चलेगा, लोग उसे पसंद करेंगे या नहीं, बट और टेलीविज़न इतना बड़ा रिस्क ले सकता है मेरे साथ या नहीं, बट अगर मौका मिलेगा यस मोस्ट सर्टेनली। लास्ट क्वेश्चन गाइस, लास्ट क्वेश्चन। स्टार्ट कर रहे हैं, रोहित की फिल्म कब स्टार्ट करेगा? रोहित की फिल्म आई थिंक मार्च में शुरू हो जाएगी बेसिक शूटिंग, और मैं जो है मई जून तक उसमें जुड़ जाऊंगा रेगुलरली, थोड़ा बिट्स एंड पीसेस में आऊँगा। रईस है पहले, तो मैं रईस यहीं पे उसकी शूटिंग। शाहरुख भी also here that Mahira Khan has been cast in Rise opposite you, so did you meet her? How was the interaction like? She's a big fan. I met her only for 2 minutes यार, and she was actually shooting. I think वो टेस्ट शूट चल रहा था उनका, और फिर शायद नवाजुद्दीन का था उसके बाद, तो मैं बस 5 मिनट के लिए मैं एक शूटिंग से दूसरी पे जा रहा था, तो मैं हेलो कहने गया, तो ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई, बट आई हैव सीन सम ऑफ हर वर्क, और शी इज़ वंडरफुल है। मैंने पहले ही बोला बहुत अच्छी एक्टर है। मैंने एक पुराना उनका एक सीरियल था शायद, जिसमें बहनें थी ऐसा कुछ, एक बार मैंने देखा था, बहुत अच्छा काम करते हैं, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट ऐसी स्टार कास्ट है कि नवाजुद्दीन है, माहिरा हैं, तो एक नए लोग हैं, नए एक्टर्स हैं, तो उनसे मुझे सीखने को बहुत मिलेगा, भी वेरी इंटरेस्टिंग है। तो आप उसको किस तरह से एंजॉय करते हैं, क्या कुछ फीलिंग्स रहती है, जैसे नया चैनल लॉन्च हो रहा है, आप शो करने जा रहे हैं? मटेरियल चीज़ तो जब आती है तो मैं उसको खुद अपने हाथ से बनाता हूँ, कुछ खिलौना आ जाए, कुछ कंप्यूटर आ जाए, तो मैं बैठ के सारा दिन उसको फिक्स करता हूँ 8-9 घंटे, और फिर फेल हो जाता हूँ। जैसे नया फ़ोन आता है, फिर पुराने फ़ोन से इसमें डालने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल फेल हो जाता है। बट नई चीज़ जब आती है यार, मैं एक तो रिस्पॉन्सिबल बहुत फील करता हूँ, और ऑफ कोर्स मेरा काम है और मुझे काम करना अच्छा लगता है। आई लाइक कि मैं कुछ नया करता रहूँ। तो एक जगह पे एक फ़िल्म बन रही है जो बहुत इससे बहुत जुदा है, बहुत अलग है, और वो चल रहा है वहाँ पर, एंड देन यू नो टू कम एंड डू दिस। और मुझे पब्लिक इंटरेक्शन की जो चीज़ें हैं वो करने का मौका कम मिलता है। अपने घर में सिर्फ वीकेंड को सैटरडे संडे आके लोगों को हाथ हिलाता हूँ, बट आई लाइक टू मीट पीपल। इस प्रोफेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है एज एन एक्टर कि ये प्रोफेशन डिपेंडेंट है कि हम कितने लोगों से मिलके उनकी ज़िंदगी से सीखें और उसको अपनी फिल्मों में एक्टिंग के रूप में डालें। लेकिन इस प्रोफेशन में टाइम ही नहीं मिलता कि नॉर्मल लोगों से मिलें। वही लोग फिल्म के शूटिंग वाले, वो भी अच्छे ही होते हैं, लेकिन क्या है, वही सारा दिन सेट पे वही 10-20 लोग जिनकी सारी ज़िंदगी जो है सिर्फ फिल्मों के बारे में है, रियल लाइफ से टच में नहीं रहती। सो आई लाइक टू कीप डूइंग दिस बिकॉज इट रिफ्रेशेस मी। तो जैसा ये है अब एन टीवी के ऊपर ही जो मुझे मौका मिला है, मुझे मालूम है जो भी लोग आएंगे दिन में, हम अगर 2 एपिसोड भी करें या 1 भी करें तो 4 या 6-8 लोगों से मिलूंगा, थोड़ा ऑडियंस से मिलूंगा, बट इट्स रियली नाइस टू बी एबल टू इंटरैक्ट एंड लर्न फ्रॉम देम। शाहरुख, यू आर कमिंग विद एनिमेटेड मूवी सम अथर्व द ओरिजिन? इट्स अ ग्राफिक नॉवल एक्चुअली, मूवी नहीं है। एक जिन्होंने बनाई है बहुत खूबसूरत, एक मिथोलॉजिकल हिस्टोरिकल टाइप उन्होंने कैरेक्टर बनाया था अथर्वा, और आई थिंक उसका ट्रेलर उन्होंने बनाया है। मे बी उनके दिमाग में ऐसा है कि वो कॉमिक लोगों को पसंद आएगी, लेकिन उसका आर्ट वर्क और उसमें जो इमेजेस है मेरे पास है वो एक्चुअली पूरी कॉमिक ग्राफिक नॉवल है। जैसे हाँ, मतलब ग्राफिक कॉमिक है सारा, जैसे कॉमिक बुक्स होती हैं, बट थोड़ा सा जो उसका कंटेंट है बहुत इंटेंस है। हाँ, वेरी नाइस, इट्स ब्यूटीफुली डन। वो जो आर्टिस्ट लोग हैं, जो राइटर्स हैं, सुपर्ब टीम है।
उसका शायद उन्होंने ट्रेलर इसलिए बनाया है टू इन्वोक इंटरेस्ट, लेकिन आई थिंक फिल्म की कोई बात नहीं। Okay, Shahrukh, Shahrukh, will Fan be a Diwali release again? I don't know the date यार. I think shooting अब खत्म हो जाएगी मार्च में. Is it? Oh, so it's a Eid release, is it? 14th August, 15 August. Oh, 15 August. I think. Yeah, I don't know. I don't know if he'll finish it by then. मार्च में shooting खत्म हो जाएगी. देख लो। Shahrukh, there is a brooch on your waistcoat. So does it stand for something? Yeah, it does actually. It is for सबसे शाना कौन? Yeah, that's what I think. Designing all the brooches and crests. I like this whole idea of crest, so I think they're designing clothes with crest on them for me for the show. शाहरुख, आपने शुरुआत टेलीविजन से की और आज आप बॉलीवुड के चिंपी हैं। कितना मिस करते हैं उस मोमेंट और आज किस तरह से आप देखते हैं टेलीविजन कितना बदल चुका है तब से लेकर अब? एक्चुअली मुझे वक्त नहीं मिलता है, लेकिन मेरा बहुत दिल करता है कि मैं टीवी पे काम करूँ। मैं किसी भी तरीके से, मतलब चाहे अवार्ड फंक्शन होस्ट कर रहे हैं या ऐसा एक गेम शो है जो बहुत खूबसूरत है और इवन फिक्शन है, लेकिन आई थिंक वक्त का तकाजा है, तकलीफ रहती है, टाइम नहीं मिलता है और बुरी आदतें पड़ गई कि सिर्फ फिल्में बनाते रहो। बट आई वुड रियली लाइक टू वर्क ऑन टेलीविजन। आई सी लॉट ऑफ स्टफ ऑन टेलीविजन। ज़रूरी नहीं वही जो हमारे इंडियन टीवी पे है, मैं इंटरनेशनल टीवी भी देखता हूँ। मुझे बहुत शौक है कि कुछ ना कुछ मैं टेलीविजन के अंदर करूँ जो क्रिएटिव है, लेकिन एक दो बार कोशिश भी की और बहुत बुरी तरह से फेल भी हुआ, क्योंकि आई थिंक मुझको इतना नॉलेज नहीं है कि टेलीविजन ऑडियंस बदल गई है या बदलती रहती है या रेगुलरली उसको ना टेलीविजन इज़ ऑन द टोज, चेंज करना पड़ता है, फिक्शन को बदलते रहना पड़ता है मौके के हिसाब से। जब हमने किया था फौजी और दिल दरिया या सर्कस या उम्मीद, बागले की दुनिया, आई थिंक तब नया था टेलीविजन, तो ऑडियंस को इतना चॉइस नहीं था, तो तकरीबन जो चीज़ें बहुत अच्छे प्रोग्राम्स भी थे, सो आई थिंक दे यूज्ड टू सक्सीड एट अ डिफरेंट लेवल। अब इतना चॉइस हो गया है, सो एवरी टाइम यू हैव टू कीप चेंजिंग। बट आई थिंक कुछ सालों में, मैं हर बार ही बोलता हूँ हर 5 साल, लेकिन इतना चेंज आता नहीं है, बट आई थिंक थ्रेशोल्ड बदल रहा है और 100% टेलीविजन के अंदर कुछ ना कुछ नई चीज़ होगी। एंड आई वुड लव टू बी, मैं हमेशा ये कहा है कि एक्टिंग का जो प्लेटफॉर्म है वो ज़रूरी नहीं होता क्या है, चाहे वो टीवी है, थिएटर है, स्टेज है, सड़क है, फिल्म है, IMAX है। आई थिंक एक्टर को हर जगह पर जाकर, और टीवी जो है बहुत ही आई थिंक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म मीडियम है। हम अपनी फिल्में जब सैटेलाइट पर करते हैं, दे सी नियरली एज मच और इवन मोर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑन टेलीविजन। कुछ मुझे लोग बता रहे थे कि जैसे अगर हमारी जो बड़ी हिट फिल्म होती है 3-3.5 करोड़ रुपए थिएटर में, 3-3.5 करोड़ लोग थिएटर में देखते हैं, तो टेलीविजन पे 9-10 करोड़ लोग देखते हैं। सो ऑब्वियसली रीच ज़्यादा है, so one should try as an entertainer to be part of it. Shahrukh, but if you had to come back into the fiction space again, which particular genre would you choose? Would it be the Saas Bahu dramas or something as real as what Mr. Bachchan did with you? What would you choose? What would be a hit with the audience? I'd like to do a thriller यार, जैसा अभी सब मुझे एक आता था जो आई थिंक मून लाइटिंग पे बेस्ड था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, किट्टू गिडवानी जी थी उसमें। दो मून लाइटिंग सीरियल था शायद अमेरिकन, एंड उसके ऊपर बेस किया था। मिस्टर धवन एंड किट्टू गिडवानी, नहीं बहुत फेमस सीरियल था, दोनों डिटेक्टिव्स थे, लड़ते रहते हैं लेकिन दे कीप ऑन। नहीं करमचंद नहीं, करमचंद भी बहुत अच्छा था। आई थिंक करमचंद इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक अपने वो धवन थे जो नुक्कड़ में भी थे, he's no longer there, but he and Kittu Gidwani, if I'm not mistaken. तो वो उनका ऐसा, I'd like to do a thriller, interesting things, because सास बहू वगैरह आई थिंक सोशल ड्रामास मैंने किए हैं, फिल्मों में किए हैं, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि उसमें मेरी स्पेस हो सकती है कि नहीं हो सकती। हिस्टोरिकल्स मुझको थोड़ी तकलीफ लगती है, बहुत कपड़े मूछे लगानी पड़ती है, बट I'd like to do something which is more thrilling or detective or या क्रिएट अ कैरेक्टर। मेरी इतनी पहुंच नहीं है, लेकिन जैसे करमचंद कैरेक्टर थे, इट वेरी इंटरेस्टिंग टू क्रिएट समथिंग। ड्रामा आप देखते हैं? सास बहू ड्रामा इस दौर का कोई देखते हैं आप? शाहरुख, आपने पार्ट मैंने मतलब कभी वो टीवी पे जो ऐसे स्निपेट्स आते हैं मैंने देखे हुए, और कई बार मैं प्रोग्राम्स पे आता हूँ टेलीविजन के, और आजकल जब होस्टिंग करते हैं तो टीवी से मिला जुला होता है, तो लोगों से मिलता हूँ, लेकिन फिर मैं पहचान जाता हूँ कि इनको मैंने वहाँ देखा है, लेकिन नहीं मैंने नहीं देखे, मैंने ऐसे पूरा कोई भी शो नहीं देखा। शाहरुख खान बाहर भी जाता, आप रोमांस के किंग हैं।
अमूमन obviously shows sports 100%, news 100%. In terms of shows, मैं ज़्यादा वेस्टर्न टेलीविज़न देखता हूँ मैं. सो हाउस ऑफ कार्ड्स या अभी जो मैंने नया देखा है फार्गो, एक फिल्म के ऊपर बेस्ड है. द रीज़न ऑल्सो बीइंग कि वो अभी साथ में मिलता है तो मैं शूटिंग पे देख सकता हूँ. वो घर के अंदर बैठकर रेगुलरली देखना आई थिंक थोड़ा मुश्किल भी होता है. सो सम ऑफ द चिल्ड्रंस प्रोग्राम्स आई सी अर्लियर बट नॉट वेरी मेनी. शाहरुख फिल्मों में इतने बिजी हैं, फिर शांत पट्टी करना क्या खास वजह रही आपने, कैसे वक्त निकाल दिया? एक्चुअली मैंने जैसे बोला कि काफ़ी सारे टीवी शोज़ जब भी मुझसे बोलते हैं कि करो तो वो हमेशा होता है कि मैं 2 महीने निकाल के करूँगा, यू नो. बट ये क्या है, मुझे ऐसा लगा मैं इस वक्त एक ही फिल्म कर रहा हूँ फ़ैन, और इंशाल्लाह इस मंथ के एंड तक जो उसका मेन पोर्शन है, जो डिफ़िकल्ट पोर्शन है उस फिल्म का, क्लाइमैक्स वगैरह, वो ख़त्म हो जाएगा. तो क्योंकि वो ख़त्म हो रहा था और हमारा शूटिंग जो है इस शो का आई थिंक 5 या 6 फरवरी से, पहले 7-8 दिन. सो आई थॉट कि मैं इसको फिट कर सकता हूँ, एक ही फिल्म है और आई थिंक लोकेशंस भी मोर और लेस सेम है हमारी फ़ैन की, तो मैं जा सकता हूँ वहाँ से. तो वक्त निकालना मुनासिब हो गया. अगर दूसरी शुरू कर लेता अभी रईस या कुछ तो फिर मुश्किल होता है. और अमूमन मैं ये सोचता हूँ कि 1 महीना निकाल के शो करूँगा, बट उस चक्कर में होता ही नहीं. सो दिस टाइम आई थिंक एवरीबडी प्लान्ड इट अराउंड मी ऑल्सो. आई थिंक द होल जी फैमिली एंड सिद्धार्थ, दे सेड वी विल प्लान इट यार, लेट्स डू इट लाइक दिस दैट वी कैन फिगर आउट सम टाइम. वो फिल्म भी अपनी है, यशराज की है, सो आई कुड वर्क आउट दैट टाइम. शाहरुख, आपके शो की अगर बात करें तो कौन से स्लॉट पे होगा और कौन सा स्लॉट आप चाहते हैं? मुझे मालूम नहीं यार. आई थिंक वो डिटेल्स एन टीवी और इनको ही मालूम है प्रोग्रामिंग के हिसाब से, अय्यर साहब को. मुझे भी बताया नहीं है, बट आई एम अज्यूमिंग अच्छा ही स्लॉट होगा यार. वरना मेरे साथ शो बना के बुरे स्लॉट में क्यों डालेंगे? शाहरुख की बात कीजिए, आप रोमांटिक किंग है, अगर टीवी में कोई एक ऐसा शो आता है जिस पर आप रोमांस करते नजर आए तो आप वो शो करेंगे? या मतलब वो तो मुझे अब तो मैं नींद में करता हूँ रोमांस, तो हाँ वो कर दूंगा मैं. अगर बट इंटरेस्टिंग होना चाहिए यार, कुछ कहानी होनी चाहिए. जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा मिक्स होना चाहिए. इट शुड बी रोमांटिक एंड थ्रिलिंग, लिटिल डिफरेंट फ्रॉम वॉट जो अभी टीवी में होता है. मुझे मालूम नहीं है वो चलेगा कि नहीं चलेगा, लोग उसे पसंद करेंगे या नहीं, बट और टेलीविज़न इतना बड़ा रिस्क ले सकता है मेरे साथ या नहीं. बट अगर मौका मिलेगा, यस मोस्ट सर्टेनली. लास्ट क्वेश्चन गाइस, लास्ट क्वेश्चन. स्टार्ट कर रहे हैं, रोहित की फिल्म कब स्टार्ट कर रहे हैं? रोहित की फिल्म आई थिंक मार्च में शुरू हो जाएगी बेसिक शूटिंग, और मैं जो है मई जून तक उसमें जुड़ जाऊंगा रेगुलरली. थोड़ा बिट्स एंड पीसेस में आऊँगा. रईस है पहले, तो मैं रईस यहीं पे उसकी शूटिंग. Shahrukh, we also hear that Mahira Khan has been cast in Rise opposite you. So did you meet her? How was the interaction? Like she's a big fan. I met her only for 2 minutes यार, and she was actually shooting. I think वो टेस्ट शूट चल रहा था उनका, और फिर शायद नवाजुद्दीन का था उसके बाद. तो मैं बस 5 मिनट के लिए मैं एक शूटिंग से दूसरी पे जा रहा था, तो मैं हेलो कहने गया, तो ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई. बट आई सीन सम ऑफ अ वर्क, और शी इज़ वंडरफुल यार. मैंने पहले ही बोला बहुत अच्छी एक्टर है. मैंने एक पुराना उनका एक सीरियल था शायद, जिसमें बहनें थी, ऐसा कुछ एक बार मैंने देखा था. बहुत अच्छा काम करते हैं, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट ऐसी स्टार कास्ट है कि नवाजुद्दीन हैं, माहिरा हैं, तो एक नए लोग हैं, नए एक्टर्स हैं, तो उनसे मुझे सीखने को बहुत मिलेगा. बी वेरी इंटरेस्टिंग है. शाहरुख साहब, कोई नई चीज़ आपकी लाइफ में आती है तो आप उसको किस तरह से एंजॉय करते हैं, या क्या कुछ फीलिंग्स रहती है? जैसे नया चैनल लॉन्च हो रहा है, आप शो करने जा रहे हैं. मटेरियल चीज़ तो जब आती है तो मैं उसको खुद अपने हाथ से बनाता हूँ. कुछ खिलौना आ जाए, कुछ कंप्यूटर आ जाए, तो मैं बैठ के सारा दिन उसको फिक्स करता हूँ 8-9 घंटे, और फिर फेल हो जाता हूँ. जैसे नया फ़ोन आता है, फिर पुराने फ़ोन से इसमें डालने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल फेल हो जाता है. बट नई चीज़ जब आती है यार, मैं एक तो रिस्पॉन्सिबल बहुत फील करता हूँ, और ऑफ कोर्स मेरा काम है और मुझे काम करना अच्छा लगता है. आई लाइक कि मैं कुछ नया करता रहूँ. तो एक जगह पे एक फ़िल्म बन रही है जो बहुत इससे बहुत जुदा है, बहुत अलग है, और वो चल रहा है वहाँ पर. एंड देन यू नो टू कम एंड डू दिस, और मुझे पब्लिक इंटरेक्शन की जो चीज़ें हैं वो करने का मौका कम मिलता है. अपने घर में सिर्फ वीकेंड को, सैटरडे संडे आके लोगों को हाथ हिला देता हूँ. बट आई लाइक टू मीट पीपल. इस प्रोफेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है एज एन एक्टर कि ये प्रोफेशन डिपेंडेंट है कि हम कितने लोगों से मिलके उनकी ज़िंदगी से सीखें और उसको अपनी फिल्मों में एक्टिंग के रूप में डालें. लेकिन इस प्रोफेशन में टाइम ही नहीं मिलता कि नॉर्मल लोगों से मिलें. वही लोग फिल्म के शूटिंग वाले, वो भी अच्छे ही होते हैं, लेकिन क्या है, वही सारा दिन सेट पे वही 10-20 लोग जिनकी सारी ज़िंदगी जो है सिर्फ फिल्मों के बारे में है, रियल लाइफ से टच में नहीं रहती. सो आई लाइक टू कीप डूइंग दिस बिकॉज इट रिफ्रेशेस मी. तो जैसा ये है, अब एन टीवी के ऊपर ही जो मुझे मौका मिला है, मुझे मालूम है जो भी लोग आएंगे दिन में, हम अगर 2 एपिसोड भी करें या 1 भी करें, तो 4 या 6-8 लोगों से मिलूंगा, थोड़ा ऑडियंस से मिलूंगा. बट इट्स रियली नाइस टू बी एबल टू इंटरैक्ट एंड लर्न फ्रॉम देम. शाहरुख, यू आर कमिंग विद एनिमेटेड मूवी फ्रॉम अथर्वद ओरिजिन. इट्स अ ग्राफिक नॉवल एक्चुअली, मूवी नहीं है. एक
जिन्होंने बनाई है बहुत खूबसूरत एक मिथोलॉजिकल हिस्टोरिकल टाइप उन्होंने कैरेक्टर बनाया था अथर्वा, और आई थिंक उसका ट्रेलर उन्होंने बनाया, मे बी उनके दिमाग में ऐसा है कि वो कॉमिक लोगों को पसंद आएगी, लेकिन उसका आर्ट वर्क और उसमें जो इमेजेस है मेरे पास है वो एक्चुअली पूरी कॉमिक ग्राफिक नॉवल है, जैसे हाँ मतलब ग्राफिक कॉमिक है सारा, जैसे कॉमिक बुक्स होती हैं, बट थोड़ा सा जो उसका कंटेंट है बहुत इंटेंस है। हाँ वेरी नाइस, इट्स ब्यूटिफुली डन। वो जो आर्टिस्ट लोग हैं, जो राइटर्स हैं, सुपर्ब टीम है। उसका शायद उन्होंने ट्रेलर इसलिए बनाया है टू इन्वोक इंटरेस्ट, लेकिन आई थिंक फिल्म की कोई बात नहीं। Okay, Shahrukh, last question, one last question. Shahrukh, will Fan be a Diwali release again? I don't know the date यार, I think shooting अब खत्म हो जाएगी मार्च में। Is it? Oh, so it's a Eid release, is it? 14th August, 15 August. Oh, 15 August. I think. Yeah, I don't know. I don't know if we'll finish it by then. मार्च में शूटिंग खत्म हो जाएगी। And Christmas पे रोहित की फिल्म रिलीज होने वाली है। अभी तो शुरू ही नहीं हुई, अभी शुरू तो कर लूँ। बट ऐसी खबरें हैं कि क्रिसमस पर रिलीज होगी। मुझे मालूम नहीं है, you know, मुझे डेट एग्जैक्टली नहीं मालूम। हाँ, इट बी वेरी हैप्पी इफ वी कैन डू इट, बट मार्च में शुरू है तो कोशिश करेंगे, रोहित ख़त्म कर लेते हैं नॉर्मली फिल्म, कि वी शुड ब्रिंग इट। आई वुड लाइक टू ब्रिंग इट दिस ईयर, आई बी वेरी हैप्पी बिकॉज रेड चिलीज़ की है, और फैन ऑल्सो आई वुड लाइक टू ब्रिंग इट दिस ईयर। रईस मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर में। और काजोल और आपकी जोड़ी वापस रोहित की अभी सिर्फ मैं ही कंफर्म हूँ फिल्म के अंदर, एंड आई थिंक 4-5 दिन के अंदर बाकी 1-2 आर्टिस्ट वो भी कंफर्म्ड हैं, बट हम ये सोच रहे हैं कि सारा जो टीम है, बड़ी स्टार कास्ट है, बहुत सारे लोग हैं फिल्म में, तो थोड़ा अनफेयर लगता है कि एक का अनाउंस किया दूसरे का नहीं। आई थिंक 5-7 दिन में रोहित 22-23 को रेकी के लिए जा रहे हैं, उसके बाद 22 आज है ना, हाँ 22 को जा रहे हैं वो। आई थिंक एज सून एज ही इज बैक आई थिंक विल अनाउंस द होल कास्ट आल्सो। You want Kajol to be there in the film? मैं तो जो डायरेक्टर चाहता है जिसको ले लें, यस, बट बी ब्यूटीफुल टू वर्क विद काजोल, बट आई थिंक दे आर स्टिल इन द middle of casting, narrating and everything, so it's not been confirmed yet. Okay guys, thank you. Sorry, we're done. Okay, last 2 questions. Shahrukh, lastly, very happy new year, and just I wanted to know कि इस साल 2015 में आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में किस चीज़ का ईगरली वेट कर रहे हैं, कि मतलब इस साल हो 2015 में काफ़ी अच्छी रिलीज भी है आपकी फैन, और जैसे कि आपने बताया रोहित के साथ भी काम कर रहे हैं, IPL के मैचेस भी हैं। हाँ, एक्चुअली प्रोफेशनली एंड पर्सनली फ़ैन हैं इंशाल्लाह। रोहित की फिल्म में रईस भी बहुत खूबसूरत है, मुझे ऐसा लगता है। ये टेलीविज़न शो है, इंडिया पूछेगा सबसे शाना कौन, और IPL के मैचेस हैं, या सो इट्स अ वर्ल्ड कप है। ये तो वो पर्सनली, बट पर्सनली अब मेरी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ एक ही जैसी हो गई है, तो मैं आई विल एंजॉय ऑल ऑफ दैट। आई एम हैविंग लॉट ऑफ फन एंड आई लुक फॉरवर्ड टू, अभी तो आई रियली जेन्युइनली आई टेल यू ऑनेस्टली, मैं तो अभी पार्टीज़ वगैरह भी नहीं जा सकता हूँ यार, बिकॉज आई एम सो बिजी विद द वर्क, एंड देन जो मुझे थोड़ा सा वक्त मिलता है, क्योंकि माई चिल्ड्रन, वन इज स्टडिंग अब्रॉड, वन इज़ ग्रोइंग अप फास्ट, द थर्ड वन इज़ वेरी स्वीट, सो मुझे यही लगता है कि थोड़ा सा भी वक्त मिल जाए 1-2 घंटा तो मैं उनके साथ रहूँ। सो द पर्सनल थिंग आई लुक फॉरवर्ड टू इज़ मोर टाइम विद देम एंड स्पेशली द चिल्ड्रन, सो दैट आई कैन यू नो एंजॉय देम व्हाइल दे ग्रोइंग अप। 26 जनवरी है, क्या कहना चाहेंगे आप? और संविधान भी हमारा बना था, किस तरह की चीज चेंजेस आप चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? मैं मेरी 26 जनवरी की यादें यही हैं कि माय फादर वाज अ फ्रीडम फाइटर, तो हमको फ्रीडम फाइटर का जो एक कोना होता था जो बिल्कुल प्रेसिडेंट के सामने वाला होता था, आई डोंट नो अभी भी वैसा है कि नहीं, और होना चाहिए, तो हमको उसके स्पेशल पासेस मिलते थे। 4:30-5 बजे उठ के लाइनों में लग के, टैक्सियाँ पकड़ के, धूल में, सुबह ओस में, दिल्ली में ओस होती है उस वक्त, गुम भी जाते थे एक्चुअली। कभी कभी ओस आती थी, तेज, यू यूज्ड टू गेट लॉस्ट, गाड़ी तो 100% गुम जाती थी, पार्किंग पीछे हुआ करता था। सो जस्ट गोइंग देयर एंड तब तो टिन फॉइल्स भी नहीं होते थे, ऐसे सैंडविचेस थोड़े से पैक करके, क्यूकम्बर वाले जो हाफ वे थ्रू सख्त हो जाते थे, बट टू वॉच, और उस वक्त झांकियाँ जो थी बहुत अच्छी लगती थी, द टैबलॉइड्स दैट वर देयर, दोज वर ब्यूटीफुल, एंड हॉर्स cavalry, and it was fantastic, and to be able to see the president of the country right up in front of you, क्योंकि उनके opposite वाला वो होता था, और and then to get back home 6 बज जाते थे शाम के। So my memories of Republic Day are that, and I wish everyone a very, very, very happy Republic Day, and a very proud Republic Day. I think we have one of the most wonderful constitutions and democracies, and you know, the whole concept of being republic like this, and I wish everyone the best, and all the freedom fighters and all those who have been involved in making our country what it is. I wish them all the luck, their families all the best. Sometimes they're forgotten, so all my love to you and all my gratefulness to you for giving us this amazing independent country and this great constitution.
Delhi All right, thank you guys. That's it. That's it. Thank you. Delhi election से 7 तारीख से अगली बार करेंगे। टीम इंडिया के लिए कोई विशेष टीम इंडिया मैं बोला यार मैं उस दिन बोला ना हम कहाँ मिले थे हम स्क्रीन अवार्ड पे यार द वर्ल्ड कप इज़ अराउंड द कॉर्नर तो मैं चाहूँगा कि जैसे पिछली बार हुआ इस साल भी हम जीतें और मैंने जैसे पिछली बार बोला कि ऑल माई विशेस टू ऑल द प्लेयर्स द टीम मेंबर्स हु मेड इट टू द वंस हु हैव नॉट मेड इट आल्सो बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट टाइम I think it's nice that we are practicing so much in Australia right now. Or inshallah, the team will come together by the World Cup time and we'll win it. And all the best, Dhoni and your squad and Virat and everyone, wherever you can hear this. My personal love to each and every one of you in the team and make us proud by playing hard, playing good. And to all the people who watch the matches, whether we win or lose, keep on celebrating and enjoying the fact that our country is one of the finest sporting nations in terms of cricket. Thank you very much, everyone. Thank you so much. Thank you. Thank you.